Friend, uh, today, as I mentioned earlier, once again I welcome you for today's session. Rather, today we are going to cover revised NAC accreditation framework. As I mentioned, its status, challenges, and what, as I mentioned, do's and don'ts. And then we will cover NAC criteria one. This is going to be outline of my talk. If you see in the outline, I will be touching upon philosophy, purpose, importance, and benefits of NAC assessment and accreditation. Then what are the salient features of revised accreditation framework? I know most since because nowadays there are many webinars happening during this lockdown period. So you must have attended many webinars during these, and you must have gone through the revised, document which have been published by NAC Bangalore. But still, I will be giving you a very important. I will be highlighting important salient features of revised accreditation framework. What is the status as in today? What are the results? Because that is also equally important. We need to understand like what are the results, what are the key trends, because this will help us to uh, 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 prepare our comprehensive future planning, because that's what we need to know, like what is happening elsewhere. So that is what we will be doing. And then we will see what kind of mid-course correction NAC has adopted till date. And then, as I mentioned earlier, I have got some results till date with very recent meeting. Standing committee meeting of NAC recently held in the month of March. So till that date, I have collected the results from NAC website, and then I will be highlighting important trends from university as well as colleges. And then most importantly, what are the challenges? Because you see, revised accreditation frameworks is very challenging, but we need to ensure how those challenges can be converted into opportunities. For that purpose, we need to be well prepared, and that kind of preparedness, what kind of preparedness we need to have for facing these challenges, and how those challenges can be converted into opportunities, that we'll be discussing here. And then at the end, we'll be touching upon various aspects of drafting of SSR and AQAR. So this is how the outline of today's deliberation is going to be. Friend, as I mentioned earlier, to begin with, I would like to tell you what is the philosophy of NAC, what is the purpose, importance, and benefits of NAC after going through NAC assessment and accreditation process. Now, what is philosophy? You can see philosophy is very simple. Philosophy is to have a continuous improvement of HEIs, so that all HEIs would be empowered to maximize their resources, opportunities, and capabilities. You see here, because NAC want us to improve how our continuous improvement. Okay, and then what is the purpose? Purpose is to fulfill the expectation of all stakeholders and importance. I'm sorry, there is a spelling mistake. Stakeholders and importance and benefits of NAC. There is something wrong in the second statement. In fact, the purpose of the NAC assessment and accreditation process is to fulfill the expectation of all stakeholders. Now, I will take a pause, and I will spend a little bit more time on this philosophy and purpose. I have been advised to speak in Marathi, Hindi, and English, so that I will be able to reach the participant. And as per the advice and request of organizers, I'm going to have the dual mode of my presentation. I'm going to use Hindi and English while my deliberation. Yes, please, sir. Please. Yes. My friend, आप सभी को पता होगा, जैसे मैंने कहा कि philosophy क्या है ना कि continuous improvement. And what is the purpose? Purpose is to fulfill the expectation of all stakeholders. जैसे मैंने कहा कि stakeholders हमारे कौन-कौन से हैं? हमारा foremost important stakeholder मैंने कहा वो है हमारा student. Obviously teacher भी है, but still our foremost important stakeholder is going to be student. So the purpose is to fulfill the expectations of our student, fulfill the expectations of teachers, fulfill the expectations of even employer too. It's not only teachers and students. What are the expectations of employers? And then same thing, fulfill the expectation of alumni, and fulfill the expectation of parents. So we need to, this is what the ultimate purpose is. Now सवाल ये है कि हम वो जो philosophy NAC की है कि continuous improvement,
हाउ कैन वी एंश्योर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट? देन जो पर्पस है, क्या है पर्पस? कि इन सभी स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, दिस NAAC असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन पर्पस में आप सभी लोगों को सभी लोगों का आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एंड आई वुड लाइक टू मेक एन वेरी वेरी सिंसियर एंड हम्बल अपील to all the audience today which are listening this webinar or listening my deliberation. आप सभी को मेरी ये गुजारिश ये है कि देखिए, हम लोग, because I am also teacher, I am working in this profession since last 32 years and हम लोगों को अगर ये NAAC assessment and accreditation process को अगर we are taking this only for sake of achieving good grade to our institution, यही अगर हमारा मकसद अगर रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि NAAC का पर्पस और फिलॉसफी है जो वो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पर्पस है, जो पर्पस एंड फिलॉसफी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हमें करे, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे सभी स्टेक होल्डर खुश रहे। लेकिन कैसे करना है, दैट इज व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल अगर इसमें कोई प्ले करता होगा तो वो है IQAC टीम। बिकॉज जहां पर वेदर इट इज यूनिवर्सिटी और कॉलेज, जहां पर भी हम काम कर रहे हैं वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो टीम ऑफ IQAC कोऑर्डिनेटर अलॉन्ग विद ऑल द मेंबर्स, IQAC coordinator along with all criteria coordinators and members of all those criteria coordinators. These people are going to play a very important role. लेकिन मैं आगे जाकर ये कहूंगा कि it's not only IQAC team, क्योंकि अगर मान लो IQAC टीम ने सोचना शुरू किया कि हमें हमारे कॉलेज को, हमें हमारे यूनिवर्सिटी को अच्छा ग्रेड लेना है, खाली वही लोग ग्रेड नहीं ला पाएंगे। इसमें पार्टिसिपेशन सभी लोगों का चाहिए, राइट फ्रॉम क्लास 4 एम्प्लॉई, मतलब नॉन टीचिंग जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है उसमें जो प्यून लोग जो है उन्हीं का भी सपोर्ट चाहिए। देन नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी हमारा सपोर्टिंग स्टाफ जो है, टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ में हमारा टेक्निकल स्टाफ होगा, नॉन टेक्निकल स्टाफ होगा, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूँ एक्टिव पार्टिसिपेशन? क्योंकि देखिए, मुझे जैसे डॉक्टर खराज सर ने बताया कि आई हैव विजिटेड मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन द कैपेसिटी ऑफ NAAC मेंबर अक्रॉस द कंट्री। तो मैं कुछ एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मैं एक एक्सपीरियंस राइट एट दिस मोमेंट शेयर करना चाहूंगा, वो ये कि ज्यादातर कॉलेजेस में ज्यादा दिखाई देता है, ज्यादातर कॉलेजेस में जब भी मैं इन द कैपेसिटी ऑफ NAAC टीम मेंबर गया हूं तो वहां पर आपको पता होगा कि NAAC टीम इज गोइंग टू हैव इंटरेक्शन विद नॉन टीचिंग स्टाफ, right? And then it's not only interaction, they are going to see, they are going to visit all the offices of non-teaching staff. और आप अगर मान लो फॉर्चुनेट हो, उसमें अगर कोई मेंबर अगर सही कॉमर्स या अकाउंट का जानकारी रखने वाला हो तो he is going to sit with your OS or maybe register of your college or university, and he is going to ask very serious questions, he is going to raise very serious queries. तो इसीलिए, लेकिन बहुत बार कॉलेजेस में हमने ये देखा कि वो जो नॉन टीचिंग के स्टाफ होते हैं उनको NAAC का ना तो फिलॉसफी पता होता है, ना तो ऑब्जेक्टिव पता होता है, ना तो पर्पस पता होता है। इसीलिए क्या होता है कि जो IQAC कोऑर्डिनेटर है बेचारे वो आते हैं एंड ही इज गोइंग टू रिप्रेजेंट एवरीवेयर। वो OS बैठे रहेंगे और ऑन बिहाफ ऑफ OS IQAC कोऑर्डिनेटर बात करेंगे। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर ऑन बिहाफ ऑफ IQAC OS अगर IQAC कोऑर्डिनेटर अगर बात करने लगे, इसका मतलब ये है कि यू हैव नॉट ट्रेन योर स्टाफ, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। इसीलिए मैं एक गुजारिश मेरी ये रहेगी नॉन टीचिंग स्टाफ, दोज हु आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप, आप सीरियसली गाइडलाइन को पढ़िए, आप सीरियसली इस प्रोसेस को समझ लीजिए। यू कैन हैव इंटरेक्शन विद द पीपल इन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोज हु आर हैविंग बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस गाइडलाइन। आप उसके साथ बैठिए, समझिए कि ये क्या है, क्योंकि आप अगर इस प्रोसेस को नहीं समझेंगे तो फिर कोई और बोलेगा और आप सवाल के जवाब नहीं दे पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे जब वो NAAC टीम असेसमेंट करने बैठेंगी तो दे आर गोइंग टू कट डाउन योर मार्क्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने कहा कि पार्टिसिपेशन आपका मतलब आप नॉन टीचिंग स्टाफ से लेकर, मैंने कहा कि प्यून से लेकर आपके जो ऑफिस में जो भी लोग होंगे, जो भी राइट फ्रॉम क्लास 4 टू क्लास 1, सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन है। टीचर फ्रेटर्निटी की बात ऐसी है कि ज्यादातर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमने ये देखा कि 2-4 लोग होते हैं या 8-10 लोग होते हैं, दे आर ओनली कमिंग फॉरवर्ड एंड एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, रात दिन बेचारे वो काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, बाकी लोग डेटा चाहिए, क्या डेटा चाहिए वो डेटा दे देते हैं, हम बताइए क्या करना है। लेकिन भैया
खाली डेटा देकर नहीं चलेगा, हमें ये एंश्योर करना पड़ेगा, बिकॉज ओनली जनरेशन ऑफ डेटा इज नॉट गोइंग टू सर्व द पर्पस, बेटर जनरेशन ऑफ इम्पैक्टफुल डेटा इज द रिक्वायरमेंट। तो इम्पैक्ट किस डेटा का है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर समझना है तो क्या गाइडलाइंस पढ़ने पड़ेंगे। इसीलिए अगर किसी इंस्टीट्यूट को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को अगर ए या आगे अच्छा ग्रेड चाहिए तो पार्टिसिपेशन ईच एंड एवरी टीचर का होना चाहिए, ना तो एक दो टीचर का नहीं। ईच एंड एवरी टीचर नीड टू नो minute details of NAAC assessment and accreditation process. At the same time, मैं आगे चलकर बात करूंगा कि जो संस्था चालक, मैनेजमेंट मेंबर्स एंड प्रिंसिपल, इन लोग, प्रिंसिपल का तो ऑब्वियसली होता ही बिकॉज ही इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ IQAC, इज द चेयरमैन, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस में देखा ऐसा हम देखते हैं कि जो संस्था के जो लोग होते हैं उनको ज्यादा इंटरेस्ट इसमें होता नहीं। वो कहते हैं ठीक है आपको क्या चाहिए हम देते, दे आर सपोर्टिव बट दे आर नॉट इन्वॉल्विंग देमसेल्फ एक्टिवली। मैं इसीलिए एक्टिव इन्वॉल्वमेंट उनका चाहता हूं, क्योंकि उनका अगर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहा, उनको अगर ये जो गाइडलाइंस की सब प्रावधानिक अगर पता रही तो दे विल बी एबल टू पिन पॉइंट, दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द लूपहोल्स। अदरवाइज क्या रहेंगे कि यू विल बी विटनेसिंग मिस्टेक ऑफ योर स्टाफ। अगर पता नहीं है तो यू विल बी विटनेसिंग मिस्टेक। रादर अगर आपको ये प्रोसेस के बारे में अगर पता है तो यू कैन बी कैटलिस्ट। आप वहां बैठकर बता सकते हो कि आपको ये करना है, वो नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स आप बता सकते हो। एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली NAAC असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन के लिए इज नॉट ओनली असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन। जब हम क्वालिटी इनिशिएटिव बनाते, जब हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, इट रिक्वायर्स सम फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फाइनेंशियल सपोर्ट की जब बात आती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो मैनेजमेंट के लोग हैं अगर वो ये बात को नहीं समझे तो वो इसको लाइक अनवांटेड एक्सपेंसेस के रूप में इसको कंसिडर करेंगे। अगर वो सही मायनों में इसको अगर समझना शुरू करेंगे तो दिस अनवांटेड एक्सपेंसेस जो समझते हैं वो इसको इम्पोर्टेंट और वाइटल इंपॉर्टेंस देके इसको सही मायनों में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंट है उसमें वो कैटलिस्ट बोल के काम करेंगे। एंड देन इट्स नॉट ओनली so right from class 4 employee, each and every members of supporting staff, each and every members of teaching fraternity, principal and management, all the members of management, those who are really actively taking actively participating in various day-to-day routine activities of college or university. तो ये सभी लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा तो ये पर्पस और फिलॉसफी का हम कहीं एड्रेस कर पाएंगे। आगे चलकर मैं कहूंगा कि हम एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कैसे करेंगे, उसके लिए क्या मैकेनिज्म होगी, क्योंकि NAAC गाइडलाइन में मैकेनिज्म नहीं दिया, मैकेनिज्म आपको इवॉल्व करना है, मैकेनिज्म आपको समझना है। इसलिए मैं IQAC टीम को बहुत बार ये सवाल आते हैं, बहुत बार ये मतलब क्वेश्चंस होते हैं, वेदर इट इज SSR और AQAR, उसमें होता है कि व्हाट आर द क्वालिटी इनिशिएटिव व्हिच हैव बीन इनिशिएटेड बाय IQAC। तो क्वालिटी इनिशिएटिव्स क्या है, ज्यादातर कॉलेजेस लिखते हैं कि वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस एंड दिस कॉन्फ्रेंस, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस एंड दिस वर्कशॉप, दिस एंड दिस, किसी को स्कॉलरशिप दिया हमने वगैरह वगैरह। दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए क्वालिटी इनिशिएटिव, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी इनिशिएटिव। आपको ये समझना पड़ेगा। ये समझने के लिए हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वालिटी इनिशिएटिव का मतलब क्या है, हमें जो हमारे पास नहीं है उसको हमें है में बदलना है, जो नहीं है उसको हमें है में बदलना है। तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट करनी चाहिए। वो स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म मैं आपको बताना चाहूंगा। वो मैकेनिज्म ऐसी है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा ना, मैंने फिर से रिपीट करता हूँ कि इट्स नॉट ओनली IQAC टीम, ईच एंड एवरी मेंबर। तो प्रिंसिपल ने क्या करना चाहिए, पहला जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो है वो ये करना चाहिए कि SWOT एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप देखिए अगर सक्सेस, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज ओनली SWOT एनालिसिस, लेट मी टेल यू। Whether it is an institution और इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल की बात करें या इंस्टीट्यूशन की बात करें, अगर आप फेलियर और सक्सेस में अगर डिफरेंस पाओगे तो ओनली द पर्सन और इंस्टीट्यूशन who is going to do a very systematic SWOT analysis will be able to test the test of success, and those who are not honest enough to have the SWOT analysis, they will have to face the test of failure only, nothing else. So that is why इसको बड़ा स्ट्रक्चर्ड मेथड्स हमें करना होगा। तो मैं आपको मेथोडोलॉजी बताना चाहूंगा। वो मेथोडोलॉजी ये रहेगी कि IQAC प्रिंसिपल ने सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रिंसिपल ने सबसे पहले सभी HODs, जितने भी डिपार्टमेंट आपके यूनिवर्सिटी के और आपके मतलब अगर आप कॉलेज में हो तो प्रिंसिपल ने क्या करना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट्स, अगर वाइस चांसलर ने क्या करना चाहिए, सभी यूनिवर्सिटी के HODs को अपना SWOT एनालिसिस करके, रियल SWOT एनालिसिस करके
प्रिंसिपल IQAC को भेजना चाहिए। आपको पता होगा कि बहुत सारे प्रिंसिपल यहाँ पर सुन रहे हैं, उन्हीं को पता होगा कि 2-3 साल पहले रूसा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने सबको एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप आपकी IDP भेजिए। IDP मीन्स क्या है? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान। जब आपने अगर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान अगर भेजा होगा, तो अगर आपको इंस्टीट्यूशन का अगर डेवलपमेंट प्लान, आपके कॉलेज का अगर डेवलपमेंट प्लान अगर आपको बनाना है, तो अनलेस यू हैव द डेवलपमेंट प्लान ऑफ योर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यू वोंट बी एबल टू हैव द डेवलपमेंट प्लान ऑफ योर कॉलेज एज ए होल। इसीलिए तब तो आपने शायद एक्सरसाइज की होगी, अगर मुझे पता नहीं आप सभी लोगों ने की या नहीं, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अगर आपको शुरुआत करनी है, अगर किसी भी प्रिंसिपल ने अगर किसी को शुरुआत करना है, I would request all the participants to please mute your mic so that there won't be any disturbance in between, because it is going to create some hurdles for other participants to listen me. This is my humble request. So my friend, तो हमें क्या करना है, सभी HOD से SOC एनालिसिस लेना है। SOC एनालिसिस की बात भी मुझे पता है, आजकल देयर आर मेनी वेबसाइट, आजकल यूनिवर्सिटी गूगल पे अगर जाओगे तो देयर आर मेनी वेबसाइट, वहां पर आप आपके कॉलेज के पैरामीटर फीड करो, आपके इंडिविजुअल कुछ पैरामीटर फीड करो, आपको SOC एनालिसिस दिखाई देगा। लेकिन लेट मी टेल यू माय फ्रेंड, that SOC analysis is not going to serve the purpose. वो तो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है जिसमें कुछ पैरामीटर ऑलरेडी जो बनाने वाले ने दिए हुए हैं, on the basis of that they are going to do the SOC analysis. But every individual, every institute has its own unique feature जो कि वहां पर हम नहीं दे सकते। इसीलिए आपको सीरियसली SOC एनालिसिस करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताऊं, जैसे कि प्रिंसिपल साबू सर ने बताया कि वो भी किसी कॉलेज में गए थे इन द कैपेसिटी ऑफ NACPA टीम मेंबर। उन्होंने भी देखा होगा कि जब हम NACPA टीम बोलकर जब कॉलेज में जाते हैं और SOC एनालिसिस जब देखते हैं, तो हम स्ट्रेंथ के बारे में तो वी आर वेरी एंथुसियास्टिक। हम अगर स्ट्रेंथ देखेंगे तो हमारे बड़ी लिस्ट होती है स्ट्रेंथ की, 20, 25, 30, 50 तक, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 पेजेस लिखे हुए थे SSR में। लेकिन आप वीकनेसेस देखेंगे तो हम छुपाने की कोशिश करते हैं। वीकनेसेस 1-2 ही वीकनेसेस रहेंगे। या तो वीकनेसेस क्या देते हैं, our student don't have some problem of communicative English। अरे भाई, ये अपने कॉलेज का वीकनेस नहीं, ये हमारे स्टूडेंट का वीकनेस है। वहां पर आपको कॉलेज का वीकनेस देना है। या तो वो रीजन का, अगर मान लो ड्रॉट प्रोन रीजन है, तो कहते कि भाई आवर रीजन इज दिस पर्टिकुलर रीजन इज ड्रॉट प्रोन। लेकिन देखिए कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको वीकनेसेस आपके इंस्टीट्यूट के देने हैं, नॉट स्टूडेंट के नहीं देने हैं, ना तो रीजन के देने हैं, ना तो आपके स्टाफ के देने हैं, आपके इंस्टीट्यूट के वीकनेसेस आपको देने हैं। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आपको स्टाफ कैन बी पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, okay, that can be mentioned, but as far as student and the region is concerned, a student, although student is a part of institute, but they are your product, they are your customer, right? तो आपको कस्टमर को तो खुश करना है, कस्टमर को तो अट्रैक्ट करना है। तो SOC एनालिसिस बड़ा ऑनेस्ट होना जरूरी होता है। हम स्ट्रेंथ के बारे में ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन वीकनेसेस के बारे में होते नहीं, और स्ट्रेंथ भी हमें रियल मायनों में स्ट्रेंथ भी समझते नहीं। तो एक तो वो SOC एनालिसिस। सेकंड जो है, व्हाट IQAC शुड डू, IQAC शुड अंडरस्टैंड what are the issues in your institution। उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर मैकेनिज्म बताना चाहूंगा। वो मैकेनिज्म ये है, right in the beginning of semester IQAC should have interactive meeting with student fraternity, all student। आप you can segregate that। आपको अगर स्टूडेंट अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो you can segregate maybe faculty wise, science, arts and commerce। अगर उसमें भी अगर ज्यादा स्टूडेंट है तो you can segregate year wise। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को आप एक बार लीजिए, सेकंड ईयर का एक बार लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट यू कैन हैव इंटरेक्शन शुरुआत में होना चाहिए, इन द बिगिनिंग। आप इंटरेक्शन में आप बच्चों को पूछिए कि भाई आपको व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन यू आर हैविंग। आप पूछिए, आपके जो टीचिंग राइट फ्रॉम, एंड देन व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट SOC एनालिसिस यू नीड टू कंसीडर राइट फ्रॉम क्राइटेरियन 1 to क्राइटेरियन 7। आप सातों क्राइटेरियन को साथ में रखते हुए देखना पड़ेगा आपको आपके SOC क्या है। सिमिलरली व्हेनेवर यू विल बी हैविंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट, वहां पर भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप करिकुलर एस्पेक्ट के बारे में पूछेंगे, टीचिंग लर्निंग पूछेंगे, रिसर्च इनोवेशन एक्सटेंशन पूछेंगे, लर्निंग रिसोर्सेज आप पूछेंगे, स्टूडेंट सपोर्ट के बारे में पूछेंगे, गवर्नेंस के बारे में पूछेंगे, एंड इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिस। ऑल सातों क्राइटेरिया के बारे में आप स्टूडेंट को पूछेंगे कि व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग यू टू डू in the capacity of teacher, in the capacity of principal, and blah blah blah। Each and everything need to be recorded very very seriously। वो आपके स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन हो गए। फिर उसके बाद आएगा टीचर्स।
क्योंकि सबसे अगर हमें कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर के कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं होते, कभी कभी टीचर की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। अरे भाई टीचर, ऑल्दो टीचर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि उनके क्या इश्यूज है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, that need to be listened. Let me tell you, if you really want continuous improvement, वहाँ जो लिखा है continuous improvement, वहाँ जो लिखा है fulfillment, to fulfill the expectation of stakeholder, उसके लिए आपके टीचर्स के क्या एक्सपेक्टेशन है right in the beginning, and then you should have meeting with employer. You need to identify a very selected employers. आपके बच्चे जहां पर भी पिछले काफी सालों से जहां एम्प्लॉय होते हैं उनको आपको बुलाना है. If not today, because nowadays every day everything we are organizing through online mode. आप online meeting भी ले सकते हो, so you can have online meeting with employers and see like what are they expecting. जो आपके स्टूडेंट जो उनके पास अभी काम कर रहे हैं, उनमें क्या शॉर्टकमिंग्स, क्या खामियां उन्होंने पाई हैं, and what kind of improvement they are expecting in infrastructure, in syllabus, in teaching learning process and all that, right? In research and infrastructure, whatever, you just listen them. Then at the same time you need to call parents, you listen them, you need to invite alumni, listen all 5 stakeholders right in the beginning. आप सुनिए उनको. हम ये नहीं करते, और हम कब बुलाते हैं उनको, जब नैक पीयर टीम आती तब हम उनको बुलाते, तब हम उनको रिक्वेस्ट करते कि देखो अभी ये आप ही का कॉलेज है, आप अगर नाराज रहेंगे हम पर, अगर पीयर टीम के सामने अगर आप कुछ भला बुरा बोलेंगे तो इट इज गोइंग टू बी एडवर्सली अफेक्टिंग ऑन अवर ग्रेड. फिर आप मत बोलिए, 5 साल ये होने दीजिए, फिर हमारा आपके प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. लेकिन क्या होता है, एक बार नैक पीयर टीम निकल जाती है, फिर 5 साल हम कुछ नहीं करते, फिर 5 साल के बाद में वो सेम हिस्ट्री हम रिपीट करते हैं अनफॉर्चुनेटली. तो अगर ये सभी स्टेक होल्डर को राइट इन द बिगिनिंग आप अगर ये बुलाएंगे, सुनेंगे, देन दिस इज गोइंग टू बी योर इनपुट फॉर प्रिपेयरिंग क्वालिटी इनिशिएटिव. हम क्वालिटी इनिशिएटिव वैसे बनाएंगे कैसे? आपको पता ही नहीं कि आपके इंस्टीट्यूशन के खामियां क्या है, आपको पता ही नहीं कि इंस्टीट्यूट के इश्यूज क्या है, और आप क्वालिटी इनिशिएटिव बनाने निकले, वैसा नहीं चलेगा ना. तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके इंस्टीट्यूशन के इश्यूज क्या है. आपने ये सब मीटिंग्स, ये सब इंटरेक्शन के साथ में आप इंश्योर करेंगे सभी स्टेक होल्डर को, देखो व्हाटएवर, ऐसा नहीं कि वो जो बोलेंगे सभी आपको करना है. आपके जो रिसोर्सेस है, आपके जितने भी रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है, विद इन दोज अवेलेबल रिसोर्सेस यू ट्राई टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस. इट डजंट मीन दैट उन्होंने 10 चीजें बोले तो 10 के 10 आपको करना है, बट यू नीड टू लिसन देम. वंस यू लिसन, you prepare a very comprehensive quality initiatives that need to be approved by your IQAC board, okay, and then it need to be sent to the your authority. It could be vice chancellor or college principal, and then authority has to get it implemented by convincing the management, because जब implement करना है तो उसके लिए पैसा लगेगा, उसके लिए समय लगेगा. and जब ये, क्योंकि आपको शुरुआत में करना है, पूरे सेमेस्टर में आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, एंड वंस द सेमेस्टर इज ओवर अगेन यू नीड टू गेट बैक एंड हैव इंटरेक्शन विद ऑल दो स्टेक होल्डर्स. आप देखिए कि आपकी जो कमिटमेंट थे, आपने जो कमिटमेंट दिए थे, जो एक्सपेक्टेशंस आपने जो स्टेक होल्डर ने आपके सामने रखे थे, वेदर यू कुड डू इट. यू सी, जो आप नहीं कर पाए वो आगे बता दीजिए, आप वो स्टेक होल्डर को क्यों नहीं कर पाए. आप जो आप कर पाए, यू विल बी वेरी हैप्पी, एंड योर स्टेक होल्डर्स विल बी वेरी हैप्पी. आप अगर ये प्रोसेस को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो कहीं आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो फिलॉसफी है नैक की, वो तब कहीं फुलफिल होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ऑन पेपर रहेगी. सिमिलरली जो हम सेकंड पर्पस जो फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, तो एक्सपेक्टेशन स्टेक होल्डर के वैसे नहीं आएंगे. तो माय फ्रेंड, इफ यू फॉलो दिस, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू हैव द वंडरफुल दिस एक्सरसाइज. एंड जो क्वालिटी कल्चर की हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी, यू विल बी एबल टू establish quality culture in your institution, and it will not be on paper only. कि quality culture, quality initiative हमारे on paper होते हैं, असलियत में तो कुछ होते नहीं है ज्यादातर इंस्टीट्यूशन में. लेकिन इस प्रोसेस से अगर आप जाओगे तो definitely it is going to be on paper and in reality as well, and your all stakeholders will be very happy. What I will go move forward. NAAC importance क्या है? NAAC accreditation nowadays it has been made mandatory. आपको सबको मैंडेटरी करना ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है आपको यूजीसी, रूसा और फाइनेंशियल एड चाहिए, तो उसके से आपका होगा नहीं. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट लाइन आप पढ़िए, NAAC accreditation determines the quality of institute in terms of education, infrastructure, research, teaching and learning. आप देखिए आजकल बिकॉज ऑफ COVID-19 अब सब कुछ बदल रहा है. अभी एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, नॉट एवरीथिंग बट एटलीस्ट 50% इज गोइंग टू बी ऑनलाइन. जब आप 50% ऑनलाइन होगा तो क्या होगा,
आपको तो अभी तो एवरीथिंग आपका तो मतलब आप यहाँ अकोला में रहकर भी स्टैनफोर्ड का कोर्स कर सकते हैं। तो अकोला का अगर बच्चा है जो स्टूडेंट है, आपको अगर उसको स्टैनफोर्ड जाने से अगर बचाना है तो आपको ये सब देना पड़ेगा। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग पेडागोगी जो आप अडॉप्ट करते हैं वो भी बड़े एडवांस होनी चाहिए। सो NAAC प्रोसेस इज गोइंग टू help you to make the fine tuning of all these processes. What are the benefits? Benefits क्या है? NAAC accreditation help the higher learning institute to know strength, opportunities and weakness. This is very very important क्योंकि NAAC process is kind of, there are two. NAAC में क्या होता है? एक तो self evaluation होता है and external evaluation, internal as well as external. जब हम खुद SSR जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पर हो, आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी, वीकनेसेस पता चलेंगे। भले ही हम नहीं लिखेंगे, हम अपने आप को छुपाने की कोशिश करेंगे, बट यू विल कम टू नो व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द चैलेंजेस। दिस NAAC only can provide you. Then what are others? NAAC identifies the internal areas of planning and allocation of resources. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, हमारे पास इंटेलेक्चुअल मैन पावर बड़ा वंडरफुल होता है, लेकिन हम आइडेंटिफाई नहीं करते। वो कोई होता है XYZ टीचर काफी अच्छा होता है लेकिन पढ़ा होता है किसी डिपार्टमेंट में, उनका यूटिलाइजेशन हम करते ही नहीं है। बट NAAC is going to provide you opportunity to identify those resources. It's not only intellectual resources, फिजिकल रिसोर्सेज। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं करते, कैपिटलाइज नहीं करते। NAAC is going to provide you that opportunity. And then NAAC accreditation will help funding agency, क्योंकि फंडिंग एजेंसी आजकल देखिए, आपको तो पता होगा कि फंडिंग एजेंसी रूसा ने भी आपको स्पेसिफिक ग्रेड अगर नहीं तो आप एलिजिबल ही नहीं हो। इट्स नॉट ओनली NAAC accreditation, you need to have a specific grade and each and every criteria में वहां पर भी अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रांट चाहिए तो ये ग्रेड CGPA चाहिए, आपको अगर रिसर्च का ग्रांट चाहिए तो ये CGPA चाहिए। सो देयर इज ए ओपन कंपटीशन। ये बड़ा अच्छा है। कंपटीशन होने से हम क्या करते हैं, because it is, everybody is like working hard and trying to improve. And the last one, NAAC grade assessment will help educational institute to initiate modern institute methods of teaching pedagogy. That is very very important, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि घसा पीटा नहीं ना, वो नहीं चलेगा। क्योंकि black and board, yes, blackboard is going to be very important tool for teaching learning process, but it's not only, you need to go beyond that. What are the what kind of teaching learning processes, what are innovative teaching pedagogy you are adopted. NAAC is going to provide you the opportunity to take the review of your own processes. So this is all the philosophy, purpose, importance and benefits of NAAC. ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये नहीं हम समझेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं और हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा। Now I'm going to tell you very quickly what are the salient features. आपको सभी को पता है कि 2017 से इंप्लीमेंट हुआ। इस ICT ड्रिवन, बड़ा ट्रांसपेरेंट है, स्केलेबल है, रोबस्ट है, थर्ड पार्टी वैलिडेशन है, आपको सभी को पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्री क्वालिफायर फॉर पीयर टीम विजिट, क्योंकि अगर आपको थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन में क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 30% स्कोर अगर नहीं होगा तो पीयर टीम आएगी नहीं। सो ब्रॉडली इसको दो हिस्से में बांटा गया। 30% है आपका पीयर टीम जजमेंट ब्रॉडली, बट इट वेरीज, and 70% broadly quantitative जो थर्ड पार्टी होता है। And then adopting, very important, adopting 100% offsite evaluation of HEIs, applying 4 cycle of accreditation. जैसा कि मान लो पिछले 3 साइकिल आप A या A+ से आगे हैं, तो then during 4th cycle you may not, पीयर टीम आपके पास आएगी भी नहीं, आप डेटा भेजोगे और then they are going to realize, NRF में जैसा होता है। And then next is, it has provided wonderful appropriate differences in metrics and weightages and benchmarking. Of course benchmarking अभी तक यूनिवर्सिटी अपने UGC ने रिलीज नहीं की, पर लेकिन आप अगर देखोगे तो मैट्रिक्स एंड वेटेजेस आप अगर देखोगे, यूनिवर्सिटी के अलग है, ऑटोनोमस कॉलेज के अलग है, एफिलिएटेड कॉलेज में यूजी के लिए भी अलग रखा है, पीजी के लिए अलग रखा है। रिसेंट जो मॉडिफिकेशन है फरवरी में जो हुआ है उसमें तो काफी चेंजेस आए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें जो रिवाइज में जो आपका स्टूडेंट और अलुमनाई का जो एनहांस पार्टिसिपेशन है, पहले इतना पार्टिसिपेशन नहीं हुआ करता था, लेकिन आज का स्टूडेंट और अलुमनाई का वेरी सब्सटेंशियल पार्टिसिपेशन, इसलिए स्टूडेंट को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल कोट करूंगा, आपको बताऊं कि अगर आप स्टूडेंट को नजरअंदाज करेंगे तो दे आर गोइंग टू पुट यू इन ट्रबल। लेट मी टेल यू, जैसे कि एक एग्जांपल बोलता हूँ मैं, एमपी के एक कॉलेज में, मैं सिटी का नाम और कॉलेज का नाम जानबूझ के यहाँ नहीं डिस्क्लोज करना चाहूंगा। एक इंदौर में हम इंदौर में गए थे, सॉरी, इंदौर में एक कॉलेज में हम गए थे। आई वाज मेंबर कोऑर्डिनेटर ऑफ द टीम, एंड देन व्हेन वी वर हैविंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट,
स्टूडेंट वेर कीपिंग मम, आई मीन ज्यादातर बच्चे इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे थे, सब बिल्कुल चुप, हमने जो भी कहा यस सर नो सर, यस सर नो सर के सिवाय जवाब नहीं आते थे. एंड देन once we conclude the meeting, all of a sudden 10 to 15 student rush to us and फिर कहने लगे कि सर ये जो कॉलेज का बाहर का जो ग्राउंड आप देख रहे हो, आज जो साफ सुथरा दिख रहा है, आप जो आपको दिख रहा है कि ये अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए रखा है, दिस इज नॉट मेन ओनली फॉर अस. ये जब आप जाओगे ना कल तक, वो कह रहे थे कि 2-4 दिन तक यहाँ पर पूरे ठेले बैठते थे, मतलब they have given that on lease, मतलब किसी और को मतलब वहां पर शॉपिंग के लिए दिया है, मतलब वहां पर स्पोर्ट्स होता ही नहीं था. देखिए सोचिए, NAAC आया तो उन्होंने सब खोल दिया. तो ये जो स्टूडेंट है, आप अगर उनके क्वेरीज को एड्रेस नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू पुट यू इन ट्रबल. सो माय फ्रेंड, यू हैव टू बी वेरी सीरियस. तो प्रोसेस में NAAC देयर आर 3 लेवल. लेवल 1 में क्या है, आपको IIQA सबमिट करना है क्विकली में. आपको, मुझे पता है कि आप सभी को ये पता होगा, क्विकली मैं आपको इसके थ्रू जाऊंगा. आपको IIQA सबमिट करना है. IIQA सबमिट करने के बाद वेदर इट इज गोइंग टू विद इन 1 वीक. नाउअडेज कभी-कभी इफ यू आर फॉर्चुनेट, हो सकता है 2-3 दिन में आपको पता चलेगा कि आपका IIQA एक्सेप्ट होता है या नहीं. So if it is accepted, you are going to get 45 days for submission of your SSR online. तो इसीलिए जब आप IIQA सबमिट करेंगे तो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट जरूरी है. ये यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत बार हमें ऐसा लगता है SSR में, जैसे कि मान लो कोई एक इंडिकेटर है जहां पर आप 400 कोई क्लेम कर रहे हैं, 400 क्लेम कर, जैसे कि मान लो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में बच्चों का जो इन्वॉल्वमेंट है, आपने कहा कि देयर आर 400 एक्टिविटीज यू ऑर्गेनाइज, तो आपको लगता है कि 400 के 400 सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है. आपको पहले काफी प्रॉब्लम आता, अभी तो काफी अवेयरनेस हुआ है, अभी शायद आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन नहीं चला तो मैं बताना चाहूंगा कि NAAC जब आप SSR सबमिट करोगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए 1-2 ही फाइल रहेंगे. बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रोवाइड द लिंक ऑफ योर वेबसाइट एंड देयर यू कैन पुट एज मच एज यू कैन. आप जितने भी डॉक्यूमेंट है, मैं तो कहूंगा कि आप जो भी क्लेम आप कर रहे हो, 100% डॉक्यूमेंट आपकी वेबसाइट को रखिए, उसका लिंक आप NAAC को दीजिए, सो दैट NAAC कैन वेरीफाई एट एनी लेवल. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा. एंड देन अगर मान लो रिजेक्ट होता है तो आपको फिर से वो प्रोसेस रिपीट करनी है. एंड सबमिशन ऑफ IIQA SSR, पहले जो विंडो टाइप होता था अब वो नहीं है, अभी थ्रू आउट दी है. दिस इज लेवल 1. लेवल 2 क्या है, वंस यू सबमिट डेटा, उसके बाद में क्या होगा, NAAC जो है उस डेटा को थर्ड पार्टी को भेजेगा, उसको कहते हैं डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, DVV प्रोसेस. अब क्या है, DVV एंड SSS बोथ आर कॉन्करेंट प्रोसेस, साइमल्टेनियसली होगा. आप SSR अपलोड करते ही, इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ, 1-2 दिन में आपको ईमेल आ जाएगा कि योर SSS प्रोसेस हैज बीन इनिशिएटेड. आपका SSS स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे जो है इनिशिएट किया गया. DVV इनिशिएट किया गया, ये आपको पता नहीं चलता, बिकॉज दे आर गोइंग टू सेंड ऑन देयर ओन. जब वो DVV प्रोसेस खत्म होगा तब कोई ऑफ कोर्स क्वेरी तो रहेंगे ही रहेंगे, वो क्वेरीज आपके पास आएंगे और उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा, व्हाटएवर, तो वो आपको करना पड़ेगा. बट दिस प्रोसेस इज गोइंग टू स्टार्ट साइमल्टेनियसली. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो DVV है, इसमें अगर 30% स्कोर आपका आता है तो ही आपके पास टीम आएगी, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं आएगा. दिस इज लेवल 2. एंड लेवल 3 क्या होगा कि अगर आपको पास अगर 30% स्कोर आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, तो टीम इज गोइंग टू कम एंड टीम इज गोइंग टू सी, टीम इज गोइंग टू इवैल्यूएट ओनली योर SOC एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा. अब बहुत बार यहाँ पर भी बहुत कॉलेजेस गलतियां करते हैं, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी भी. तो हम क्या करते, पूरा का पूरा SSR उनके सामने रखते, हर मतलब राइट फ्रॉम मतलब प्रिंसिपल से लेकर वाइस चांसलर से लेकर नीचे तक सभी HOD जो है ना, पूरे के पूरे SSR का प्रेजेंटेशन करते. ऐसा नहीं करना चाहिए माय फ्रेंड. कुछ लोग NAAC PAT में भी आजकल ऐसा है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कभी-कभी, क्योंकि पहले अगर विजिट रही तो उनको पता नहीं रहेगा. ट्रेनिंग तो होता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पता नहीं रहेगा. दे में आस्क यू द क्वांटिटेटिव डेटा, बट ऐसा नहीं है. क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपका ऑलरेडी हो चुका होता है बाय दैट टाइम, आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है. सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप गलती से क्वालिटेटिव को फोकस ना करते हुए अगर आप क्वांटिटेटिव को फोकस करोगे तो क्या होगा, एट द एंड ऑफ द डे जब टीम बैठेगी ग्रेड देने के लिए, उनको कुछ दिखेगा नहीं, वो कहेंगे कि यार इनका कुछ अच्छा नहीं है, तो आपको ग्रेड अच्छा नहीं मिलेगा. Therefore you should focus only on qualitative metrics, nothing else. प्रेजेंटेशन में भी, इंटरेक्शन में भी, सब तरफ ये आप करोगे तो डेफिनेटली बचोगे. तो ये थर्ड ये होगा. एंड देन एट द एंड होने के बाद तीनों जो कोलेट होगा, मतलब SSS, आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये सब एक साथ करके अगर वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाएगा.
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डिसीजन होगा, एंड इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ 1-2 दिन में आपका रिजल्ट हो सकता है। हमारे यूनिवर्सिटी का ऐसा हुआ था पिछले साल, आई मीन 2018 में, तो हमारा 27th ऑफ मार्च को हमारा इट वाज द लास्ट डेट ऑफ आवर नैक विजिट, एंड 29 को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, क्योंकि फॉर्चुनेटली क्योंकि आजकल जो पीए टीम आती है उसी दिन बिफोर 5:30 दे हैव टू अपलोड द रिपोर्ट उसी दिन। तो बाय दैट टाइम नैक के पास तो सब कुछ होता है, एसएसएस का डेटा होता है, रिजल्ट होता है, क्वांटिटेटिव का होता है। 5 बजे आ गया दूसरे दिन, अगर मान लो इफ यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेकंड डे, थर्ड डे योर रिजल्ट कैन बी डिक्लेयर। सो दिस इज overall process which I have already explained, so I will not repeat this again. Now ये important है क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे है, क्योंकि आप देखिए अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज को बिलोंग करते हो एंड इफ यू आर ओनली यूजी कॉलेज, आप देखिए कि आपको क्वालिटेटिव तो बाय एंड लार्ज सेम है। आप देखिए 36, 35, 35, देखिए क्राइटेरिया और की इंडिकेटर्स बाय एंड लार्ज सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्वालिटेटिव मैट्रिक्स अगर देखेंगे वहां तक भी अलग अलग है, बट नंबर इज ऑलमोस्ट सेम। But if you look at quantitative matrix, there has been substantial change. You can see there has been, हाँ यहाँ पर भी change है, मतलब मैट्रिक्स अलग है, that I am going to highlight whenever we will be going through the respective criteria. तो क्वांटिटेटिव देखिए, आप अगर यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो तो 79 है, एटोनोमस कॉलेज को 72 है, बट यूजी कॉलेज को ओनली 58, पीजी कॉलेज को 60, you can see. Okay, and as a result of that, total matrix जो यूजी कॉलेज को ओनली 93, पीजी को 96, पर यूनिवर्सिटीज को 115 है। ये आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब आगे जाएंगे तो हमें उसका पता चलेगा। आप देखिए क्राइटेरिया वाइज मैं थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा, ये इसलिए हाईलाइट करना चाहूंगा कि आपको पता होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया में कितने मार्क्स आपको कौन सा इंडिकेटर ज्यादा दे सकता है। आप देखिए ये जो क्राइटेरिया 1 जो करिकुलर एस्पेक्ट जो है, यहाँ पर आप देखोगे करिकुलम डिजाइन एंड डेवलपमेंट, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनोमस कॉलेज। यहाँ पर ये नॉट एप्लीकेबल रहेगा यूजी पीजी कॉलेज के लिए, एंड करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ये यूनिवर्सिटी के लिए नॉट एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन आप अगर सबसे ज्यादा आप देखिए यहाँ पर 100 मार्क्स यूजी पीजी को, यूनिवर्सिटीज और ऑटोनोमस कॉलेज को 150 है, क्योंकि डिजाइनिंग इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज पर एज द करिकुलर एस्पेक्ट इज कंसर्न। आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ पर मिलेंगे, वेदर यू आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी और पर्टिकुलर फ्रॉम कॉलेज, एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड करिकुलम एनरिचमेंट। इसलिए जब हम आगे जाएंगे क्राइटेरिया में तो आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, सो दैट यू विल बी एबल टू अर्न गुड मार्क्स। क्राइटेरिया 2 जो है ये, दिस इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ वेरी वेरी आई मीन इंपॉर्टेंट फॉर कॉलेजेस इन पर्टिकुलर। आप देखिए सबसे ज्यादा अगर मार्क्स अगर आप ले सकते हो तो क्राइटेरिया 2 में है, 350 है। यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज को रिलेटिवली कम मार्क्स है। अब यहाँ पर भी आप देखिए कैटरिंग टू द स्टूडेंट एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यहाँ पर सबसे ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। एंड देन स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड लर्निंग आउटकम एंड स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, यहाँ पर भी 60-60। तो ये 4 क्राइटेरिया को आपको सबसे ज्यादा हाईलाइट करना है। आप कहेंगे कि टीचर प्रोफाइल क्वालिटी में 60 है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीचर क्वालिटी प्रोफाइल क्वालिटी में हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी आपके पास होगा उसको आप आगे बढ़ा नहीं सकते, जो भी टीचर्स आपके पीएचडी होंगे उसको आप पीएचडी अचानक बढ़ा नहीं सकते। बट एज पर एज स्टूडेंट परफॉर्मेंस लर्निंग आउटकम इज कंसर्न, यस यू कैन फोकस स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे, यहाँ पर फोकस कर सकते हो, स्टूडेंट डाइवर्सिटी में फोकस कर सकते हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप फोकस कर सकते हो। सो दीज 4 indicators are going to play very important role. As far as criteria 3 is concerned, you can see प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज, ये कॉलेजेस के लिए लागू ही नहीं होता, तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंसल्टेंसी कॉलेजेस के लिए लागू नहीं होता, आप देखिए राइट। एक्सटेंशन एक्टिविटी सबसे ज्यादा अगर मार्क्स आप पाओगे कॉलेजेस एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस टू, एक्सटेंशन एक्टिविटी में सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि एक्सटेंशन एक्टिविटी में चैलेंजेस क्या है। एंड इफ यू आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आपको सबसे ज्यादा मार्क्स है रिसर्च पब्लिकेशन एंड अवार्ड्स। रिसर्च क्राइटेरिया 4 और 5 में सभी को एक जैसे मार्क्स है, वेदर यू आर कॉलेज, ऑटोनोमस कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूजीपीजी कॉलेज, ऑल आर 100। यहाँ पर आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा आप फोकस कर सकते हो। स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन में आप अगर यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज है तो स्टूडेंट प्रोग्रेशन में फोकस कर सकते हो। एंड इफ यू आर फ्रॉम यूजीपीजी कॉलेज, यू कैन फोकस ऑन स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड एक्टिविटीज। गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, आप देखिए यहाँ पर भी 100 मार्क्स है सभी को, ऑल सेक्टर्स। बट कहां पर ज्यादा फोकस कर सकते, फैकल्टी एम्पावरमेंट स्ट्रेटेजीज, आप देखिए यहाँ पर अच्छे मार्क्स है। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम,
IQAC, यहाँ पर 30 मार्क है। तो आप देखिए 2 इंडिकेटर है इसमें जिसके ऊपर से आप ज्यादा फोकस कर सकते हो और मार्क्स ले सकते हो। Now, as far as last criteria is concerned, institutional values and best practices, यहाँ पर ऐसा है कि आप देखिए, although this institutional values and social responsibilities को 50-50 मार्क्स है, लेकिन इसमें इतने सारे सब पार्ट है कि आपको ये 50 लेने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। But as far as 7.2 and 7.3 is concerned, if you could identify your best practice very meticulously, identify your distinctive feature of your institution, ये 50 मार्क जो है ना आप इंश्योर कर सकते हो, So whenever you are looking at criteria 7, आप बेस्ट प्रैक्टिस आप सिस्टमेटिकली, जब हम क्राइटेरिया 7 डिस्कस करेंगे तब हम बड़े विस्तार से इसको डिस्कस करेंगे हम। ओके, नाउ इंस्टीट्यूशन ग्रेड इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि यही चेंजेस है। पहले जो है A प्लस जो है 3.5 से हुआ करता था, लेकिन अभी काफी दिनों से 3.26 ऑनवर्ड A प्लस कर दिया। ओके, नाउ ग्रेड क्वालिफायर मैंने पहले हमने क्या बोला था कि ग्रेड क्वालिफायर की बात हमने नहीं की थी। आपको बताऊं कि मतलब इसके बजाय, मतलब जो थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन जो होता है उसमें 30% स्कोर तो आपको चाहिए। उसके बाद सब कुछ होने के बाद जब ग्रेड जब इनके पास जाएगा, नैक के पास, जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल जाएगा तो दे आर गोइंग टू सी वेदर यू हैव रिसीव्ड 1.51 in the selected criterion, because now they have made the changes very recently, कि उसमें सभी क्राइटेरिया वो नहीं देखते, but they have not disclosed so far, but they are going to disclose it very soon. They have made the changes. So सभी क्राइटेरिया, कुछ selected क्राइटेरिया होंगे जिसमें आपको 1.51 जरूरी होगा। Then what kind of mid course corrections NAC has done, वो भी important है। बेंचमार्किंग NAC ने अभी तक बेंचमार्किंग डिस्क्लोज नहीं किया, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। आप देखिए, एक जब 2017 को जब हमने रिवाइज एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क को शुरू किया था, तब एक ही गाइडलाइंस थी सभी के लिए, वेदर यू आर फ्रॉम यूजी कॉलेज, पीजी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फार्मेसी, व्हाटएवर। लेकिन क्या हुआ, अभी ओवर द टाइम उन्होंने क्या किया, सभी के अलग अलग मैन्यूअल्स निकाले। ओके, बट बेंचमार्किंग का प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर इवन अभी भी पीजी कॉलेज भी, यूजी कॉलेज भी, लाइक आप देखिए कि आपके अकोला डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई रिमोट प्लेस में अगर कोई कॉलेज है एंड आपका खंडेलवाल कॉलेज है, तो वी कैन नॉट कंपेयर द खंडेलवाल कॉलेज विद दैट रिमोट प्लेस कॉलेज, दोनों के लेकिन क्राइटेरिया, लेकिन देखिए गाइडलाइन सेम है, इसीलिए बेंचमार्किंग को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेंचमार्किंग कैन नॉट बी सेम फॉर बोथ द कॉलेजेस, इसलिए दिस इज द रीजन व्हाई benchmarking is not being declared, but NAC के पास है, they are adopting whenever they are doing evaluating institutions, assessing institution, they are doing it. Okay, introduction of optional matrix, पहले देखिए इसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। पहले 5% आप ऑप्ट कर सकते थे सभी, रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर यू आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस कॉलेज और यूजीपीजी कॉलेज। अभी उन्होंने क्या किया, 5% को 3% पे लाया, यू ओनली 30 मार्क है आप ऑप्ट कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूनिवर्सिटी को तो रखा ही नहीं उन्होंने अभी, क्योंकि अब इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूजी एंड पीजी कॉलेजेस। ओके, देन शिफ्ट ऑन विंडो सिस्टम, ये आपको पता है ग्रेड क्वालिफायर में रिव्यू हो रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा टेम्पलेट, जब शुरुआत जो की थी, जो पहले फेज में जिन लोगों ने असेसमेंट किया, दे यूज्ड टू स्ट्रगल लाइक एनीथिंग। अभी डेटा टेम्पलेट आ रहा है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि कहाँ डेटा कैसे देना है। एसओपी है, क्योंकि पहले एसओपी नहीं हुआ करता था, तो इसलिए वी यूज्ड टू बी कंफ्यूज कि भाई क्या डेटा देना है, कैसे जस्टिफाई करना है डेटा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के लिए। सो देयरफॉर वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ क्वेरीज, ह्यूज नंबर ऑफ क्वेरीज, बट नाउ सिंस एसओपी इज गिवन, अभी एसओपी में रिसेंटली दे हैव मेड द सब्सटेंशियल चेंजेस इन एसओपी आल्सो इन द मंथ ऑफ फरवरी, आप देखिएगा उसमें काफी चेंजेस आए हैं। सो दे आर डूइंग मिड कोर्स करेक्शंस। What are the rules for non-applicable matrix? मैंने पहले कहा कि it is only for applicable for affiliated and autonomous colleges, जो पहले यूनिवर्सिटी को हुआ करता था, अभी नहीं है। It is only 3%, 30 weightage and 1 to 7 criteria are essential. आप ये 3 criteria, आप कोई भी इंडिकेटर, कोई भी मैट्रिक्स, 3 क्राइटेरिया का आप नहीं कर सकते। मीन्स आपके पास अवेलेबल क्या है, क्राइटेरिया 3, 4, 5, 6। सो 3, 4, 5, 6 ये 4 ही क्राइटेरिया आपके पास अवेलेबल है। और उसमें भी कौन से क्राइटेरियाज है आप देखिए, दीज आर द, बिकॉज क्योंकि वो रेस्पेक्टिव जब हम क्राइटेरिया देखेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए इसमें एज पर एज क्राइटेरिया 1 तो है ही नहीं, 3, 4, 5, 6 की ये है, दिस इज फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस एंड दिस इज फॉर ऑटोनोमस कॉलेजेस। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? अब चैलेंजेस, डीबीवी के कुछ चैलेंजेस है, उसका रीजन ऐसा है कि सोर्स ऑफ एविडेंस, लिमिटेड डेटा प्रोवाइडेड बाय द एचईआई।
पहले हुआ करता था, अभी अभी थोड़ा लोगों को पता चल गया है कि डेटा कहाँ देना है। पहले ऐसा होता था कि लोगों को पता नहीं चलता था कि 5 MB का स्पेस हुआ करता था, तो पीपल यूज्ड टू स्ट्रगल। अभी लोगों को पता चल गया, जिनको पता नहीं उनके लिए ये आप सुन लीजिए कि आपको आपके वेबसाइट पे आप अनगिनत डेटा रख सकते हो, आप जितना चाहे उतना डेटा आप रख सकते हो, आपको खाली लिंक देनी है। लिंक कहाँ देनी है? आपका जो दो जगह पे लिंक दे सकते हो आप, एक जो है डेटा टेम्पलेट, आप एक आखिरी एक कॉलम बना लीजिए, वहां पर हर इंडिकेटर का आप लिंक दे सकते हो, नंबर 1। एंड नंबर 2, आप क्या कर सकते हो, हर इंडिकेटर के बाद जब आपको 3 फाइल अपलोड कर सकते हो एसएसआर में। 3 फाइल क्या क्या है? 1 इज डेटा टेम्पलेट एंड उसके सिवा 2 डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, एक इंपॉर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट आपको जो लगता है वो आप अपलोड करिए, दूसरा जो है आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए, पीडीएफ बनाइए, उसमें खाली लिंक दीजिए, you type down there, click here. Once they are going to click there, they will be, I mean, you will be taking them to your website and they can verify your data. तो आप ऐसा करिए। तो पहले ये प्रॉब्लम था, इसलिए दिस वाज वन ऑफ द चैलेंज, इनसफिशिएंट डोमेन एक्सपर्टीज। क्योंकि इसमें आजकल फिर भी ट्रूली स्पीकिंग नैक ने भी कुछ काफी पैसा दिया है कॉलेजेस को ये इस टाइप के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब बहुत सारे कॉलेज भी खुद होके आ रहे हैं, जैसे कि भी खंडेलवाल कॉलेज ने आप सभी के लिए वर्कशॉप रखा है। तो नाउअडेज लाइक पीपल आर गेटिंग ट्रेन, बट स्टिल देयर आर मेनी इश्यूज, थोड़ा एक्सपर्टीज का प्रॉब्लम है, एंड देन वो होने की वजह से क्या हो रहा है ना, पीपल आर स्ट्रगलिंग। इकोसिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन अनप्रिपेयर्ड फॉर कंप्लीट आईसीटी ड्रिवन अप्रोच, क्योंकि आपने देखा होगा कि नया गाइडलाइन जो इट इज कंप्लीटली आईसीटी ड्रिवन, तो इसके लिए लोग तैयार नहीं है, कॉलेजेस में लोग तैयार नहीं है। इट्स नॉट ओनली कॉलेज, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, वहां पर भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाइम ओवर रन्स ड्यू टू डिलेज ऑन द पार्ट ऑफ ईच ईयर। हम क्या करते हैं, बिकॉज सिंस वी आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड ऑन अवर वो, तो क्या होता है ना, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, नाम मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, महाराष्ट्र की भी कुछ यूनिवर्सिटीज है जो अपना टाइमलाइन पूरा नहीं कर पाए फॉर सम रीजन, तो उनको फिर नैक को लिखना पड़ता है, टाइमलाइन बढ़ाकर लेनी पड़ती है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अनप्रिपेयर्डनेस। इंफॉर्मेशन आईसीटी का मैंने ऑलरेडी बताया। नाउ व्हाट आर द अदर चैलेंजेस इन आरएफ? रेजिस्टेंट फॉर चेंज फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। हमारे जितने भी स्टेक होल्डर जैसे कि टीचर्स है, हम जो भी चेंज आए वो हम एक्सेप्ट नहीं करने के तैयार नहीं होते। हमारे स्टूडेंट भी वैसे ही है, हमारे अलुमनाई भी बहुत बार ऐसा करते हैं। तो ये जो चेंज आ रहा है, वट एवर चेंजेस विच हैव बीन अडॉप्टेड और विच आर बीइंग अडॉप्टेड बाय नैक, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये कंप्लीट ट्रांजिशन है, आईसीटी ड्रिवन मॉडल अभी आया है, तो इसलिए ये चेंज बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ी अवेयरनेस आ रही है। Need for considering feedback from the field and fine tuning the next framework. This is also equally important क्योंकि ये already NAC has already started, because what NAC is doing once, क्योंकि पिछले जून में भी एक मीटिंग, फीडबैक मीटिंग उन्होंने ली थी। I was part of that feedback meeting at NAC Bangalore. उन्होंने कुछ फीडबैक लिया, वो फीडबैक का नतीजा ये आया है कि हमने तब बताया था उनको कि भाई ये जो पेरेंट है, पेरेंट से फीडबैक लेना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में पेरेंट्स आर फ्रॉम रूरल एरिया एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज करिकुलम, तो उनसे कैसे फीडबैक लिए। सो दे हैव एक्सेप्टेड, वो निकाल दिया, इनोवेशन का, रिसर्च का निकाल दिया, पेटेंट का निकाल दिया। सो लाइक दैट व्हाट दे आर डूइंग, they are evolving. NAC is also evolving. Suitability of framework with specialized HES, NAC address कर रही है। Full reaction on tough result with downgrading, क्योंकि अभी आपने देखा होगा। Can you please mute your mic? Suitability of फिर रिएक्शन विद टफ रिजल्ट विद डाउनग्रेडिंग। आपको ये भी पता होगा कि आजकल अभी अगर आपके कॉलेज का अगर ओल्ड फ्रेमवर्क से आपने अगर किया होगा, तो रिवाइज फ्रेमवर्क में इफ यू आर नॉट सीरियस, if you are not structured, then you are going to definitely go downside. But if you are really structured and if you are very serious, I'm sure you are going to upgrade, you are going to be upgraded, let me tell you. And there are a lot of litigations also, क्योंकि आजकल NAC ग्रेड को ग्रांट से जुड़ा है, इसीलिए काफी लिटिगेशंस भी आ रहे हैं NAC के पास। एंड मैचिंग RAF आउटकम्स विद पब्लिक परसेप्शन, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि कुछ कॉलेज, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे है कि उनको दे डोंट डिजर्व टू गेट दैट ग्रेड, लेकिन उनको मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो मतलब डिजर्व करते लेकिन मिल नहीं रहा। ये पुराने इसमें बहुत ज्यादा होता था, लेकिन अभी नए इसमें रिलेटिवली दे हैव, आई मीन दिस NAC हैज एड्रेस्ड दिस इशू। नाउ क्राइटेरिया वाइज कुछ मैं आपको चैलेंजेस बताऊंगा।
क्राइटेरिया वाइज चैलेंजेस ऐसे हैं, आप देखिए क्राइटेरिया 1 करिकुलर एस्पेक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकल रीजनल नेशनल ग्लोबल नीड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम बाय सीओज बीओज एंड पीएसओ। इसका मतलब ये है कि आपको जो है आउटकम बेस्ड करिकुलम चाहिए। अब देखिए अगर आपका अभी अभी फॉरगेट अबाउट यूनिवर्सिटीज, फॉरगेट अबाउट कॉलेजेस, लेकिन ऐसी कोई यूनिवर्सिटी, देयर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज रादर, मैं ऐसे नहीं कहूंगा कोई नहीं है, क्योंकि हम खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने हमने हमारा आउटकम बेस्ड एजुकेशन 2018 से इंप्लीमेंट किया है, बट दिस इज ओनली इन यूनिवर्सिटी कैंपस, नॉट टू द एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो कॉलेजेस में आउटकम बेस्ड एजुकेशन है ही नहीं, अब नहीं है तो इसको कैसे एड्रेस करेंगे? दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। इंट्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट और एड-ऑन डिप्लोमा कोर्सेज, यहाँ पर भी ज्यादातर ऐसा होता है कि कॉलेज के लोग सर्टिफिकेट इनिशिएट करते, प्रोग्राम प्लान करते, यूनिवर्सिटी को भेजते, इन टाइम उसका अप्रूवल मिलता नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं जब क्राइटेरिया में जाएंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं, मैं खाली यहाँ पर चैलेंजेस बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्सेज हैविंग फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पर भी हम थोड़ा गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी सिलेबस तो यूनिवर्सिटी ने दिया है, अब अगर सिलेबस में अगर ये प्रावधान नहीं है एम्प्लॉयबिलिटी का और एंटरप्रेन्योरशिप का, तो हम क्या करें? लेकिन मैं आपको बताऊं यहाँ पर कॉलेजेस बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लो आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में कोई कोर्स नहीं है जिसके जिसके एम्प्लॉयबिलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप को स्पेसिफिकली एड्रेस करता है, तो व्हाट यू कैन डू? You can have add-on course. You can have add-on course which will be focusing on employability and entrepreneurship. And this add-on course का ड्यूरेशन 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है। आप उन्हीं स्टूडेंट को दीजिए जो आपके यूनिवर्सिटी में और आपके कॉलेज में किसी और कोर्स को एनरोल हो चुके हैं, आप उन्हीं स्टूडेंट को आप एनरोल करिए, एंड यू कैन एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स आर बीइंग एनरोल्ड। और बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कॉलेजेस का कि इसको यूनिवर्सिटी का अप्रूवल चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। नैक कभी भी ये पूछता नहीं कि वेदर दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय यूनिवर्सिटी और नॉट। हाँ, वो पूछेंगे, लेकिन आप बता सकते हो कि वी हैव सबमिटेड बट नैक हैज नॉट, आई मीन यूनिवर्सिटी हैज नॉट गिवन अप्रूवल। तो आप आपके मैनेजमेंट, लोकल मैनेजमेंट कमेटी जो भी होगी आपकी, आप उसमें आप अप्रूव करिए, सिलेबस अप्रूव करिए, आपके खुद के एकेडमिक काउंसिल आप करिए आपके कॉलेज का, and then you get the assessment and award certificate on your own. This can be very much done. Launching of new courses and program, यहाँ पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि we always we always depending on the university only, क्योंकि नया कोर्स अगर आपको प्रपोज, जैसे कि मान लो नया कोर्स का मतलब क्या है, जैसे कि आपके पास कॉम्बिनेशन है, बीएससी में फॉर एग्जांपल पीसीएम एक ग्रुप है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, आप बायोलॉजी शुरू कर सकते हो, उसमें बायोटेक्नोलॉजी शुरू कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर सकते हो, इंस्ट्रूमेंटेशन शुरू कर सकते हो, कंप्यूटर्स शुरू कर सकते हो। देयर आर, आई मीन यू कैन प्रोवाइड लॉट मेनी ऑप्शंस। सो यू, आप खाली प्रोग्राम ही नहीं है, आप नया प्रोग्राम भी, मैं तो कहूंगा कि भाई व्हाट यू शुड डू एवरी ईयर, एटलीस्ट 1 न्यू प्रोग्राम शुड बी इनिशिएटेड, एटलीस्ट 1 न्यू कोर्स शुड बी इनिशिएटेड। अगर आप नहीं करोगे तो AQR में लिखोगे क्या? दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रू CBCS एट UGPG लेवल, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कॉलेज कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में CBCS नाम का है, रियल CBCS है ही नहीं। आई एम नॉट एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ NAC. I am looking at these challenges, जो पर्पस और जो मैंने फिलॉसफी बताई, पर्पस फिलॉसफी क्या है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। पर्पस क्या है? टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। तो हमें दोनों पर्पस को भी सामने रखना है एंड फिलॉसफी को सामने रखना है। नैक ग्रेड तो आते रहेगा, आप अगर ये दो बातें को फुलफिल कर पाए तो नैक ग्रेड तो आएगा ही आएगा आपको। तो जब हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CBCS की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि रियल इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं रहा। CBCS नाम का है, वो कॉलेजेस में मतलब ऑप्शन तो है, लेकिन बच्चों को हम बोलते हैं कि नहीं नहीं आपको यही सब्जेक्ट लेना है। ट्रू CBCS है ही नहीं, आप कर नहीं सकते। बट दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस, दैट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इंटीग्रेशन ऑफ क्रॉस कटिंग issues relevant to gender, environment, sustainability, human values and professional ethics into curriculum. बहुत बार हमें ऐसे लगता है कि एक कोर्स हमने कर दिया, एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट अटेंड कर रहा है, that is enough. No. What NAC is expecting? NAC is expecting that each and every student should learn what is gender sensitization, what is environment, what is sustainability, what is human values, what is professional ethics. All those courses need to be included in the curriculum. अगर आपके curriculum में नहीं है, आप add-on courses शुरू करिए and then you can impart those skills. Introduction of value-added courses, ये भी वैसे ही है। Value-added is not only for soft skill. You see, value-added can be for enhancing soft skill of your student, और दूसरा जो है value-added could be for enhancing
द सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का मतलब क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स चला रहे हो फॉर एग्जांपल, और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी आप पढ़ा नहीं रहे, करिकुलम में है ही नहीं। तो अगर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होने के बावजूद अगर स्टूडेंट, आपका स्टूडेंट अगर वो ऑप्टिकल फाइबर नहीं जानेगा तो क्या कहाँ को जॉब मिलेगा उसको? तो आपको क्या करना है, आपको वैल्यू एडेड कोर्स बनाना है। वो 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का हो सकता है, लेकिन NAAC क्या कहता है, इट शुड बी एटलीस्ट 32 क्लॉक आवर्स ऑफ ड्यूरेशन, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। फील्ड प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप का वैसा ही है। हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के करिकुलम में फील्ड प्रोजेक्ट नहीं है, इंटर्नशिप नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी के करिकुलम में अगर नहीं भी हो तो भी हम क्या कर सकते हैं, एट कॉलेज लेवल यू कैन इंक्लूड दिस इन द करिकुलम। There's nobody is going to stop you. आप आइडेंटिफाई करिए जिस सिटी में आप हो, आप आइडेंटिफाई करिए कि व्हाट आर द पोटेंशियल इंडस्ट्रीज, पोटेंशियल एरियाज, वहां पर आपके स्टूडेंट को आप भेजिए फुल प्रोजेक्ट करने थ्रू आउट द ईयर एंड मेक इट मैंडेटरी। ओके, देन फीडबैक फ्रॉम करिकुलम। यहाँ पर फीडबैक में क्या है कि हम फीडबैक तो लेते हैं, फीडबैक भी कैसा लेते हैं, देयर आर नाउअडेज NAAC हैज मेड इट मैंडेटरी टू हैव ऑनलाइन फीडबैक। लेकिन ऑनलाइन फीडबैक भी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, डेटा तो हमारे पास आ रहा है, उसका एनालिसिस तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसका आगे रियलिटी हो नहीं रही, रियलिटी में कुछ हो नहीं रहा। मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पर, यू नीड टू सेलेक्ट, यू नीड टू कलेक्ट द जेन्युइनली, यू नीड टू कलेक्ट जेन्युइनली द फीडबैक। जो मैंने बताया, एक तो ऑनलाइन भी करिए और सेमेस्टर के पहले जो मैंने बताया था वो भी आप करिए, फ्रॉम ऑल द 4 स्टेक होल्डर्स। पेरेंट्स को निकाल दिया जैसे मैंने बताया, ऑल स्टेक होल्डर्स कौन से रहेंगे अभी, स्टूडेंट, टीचर, एम्प्लॉयर, एलुमनाई एंड पेरेंट्स को निकाल दिया। तो इनसे आप लीजिए, लेने के बाद आप एनालिसिस करिए, एनालिसिस के बाद में दो फीडबैक नीड टू बी डिस्कस इन द एचओडी मीटिंग, फैकल्टी मीटिंग। उसमें आप पर्टिकुलर एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान शुड बी सबमिटेड टू प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी टू गेट इट इम्प्लीमेंट, एंड इम्प्लीमेंट के बाद में उसका एक्शन टेकन लिखिए। मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास फीडबैक कलेक्शन है, फीडबैक एनालिसिस है, उसका एक्शन टेकन है, एक्शन टेकन के बाद में आपने उसको उसका मतलब एक्शन टेकन क्या हुआ पिछले साल हमने, उसका रिपोर्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, उसका भी डेटा आपके पास है। टीचिंग लर्निंग में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम अदर स्टेट एंड कंट्री अभी निकाल दिया गया, लेकिन आपको पता होगा NIRF में स्टिल ये डेटा आपको देना है। डिमांड रेशियो इज गोइंग टू बी वन ऑफ द चैलेंज, क्योंकि आजकल सभी लोग कहते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट आ ही नहीं रहे, हम क्या करें। अब मैं आप सभी को सवाल करना चाहता हूं कि स्टूडेंट नहीं आ रहे, इसका कौन जिम्मेदार है? आप कहेंगे कि करिकुलम जिम्मेदार है। यस, टू सम एक्सटेंट यू आर राइट। अगर करिकुलम अगर अच्छा नहीं है, आप अगर अच्छा करिकुलम नहीं दोगे तो स्टूडेंट नहीं आएंगे। बट एट द सेम टाइम डोंट यू थिंक दैट टीचिंग पेडागॉजी इज आल्सो गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल? क्योंकि करिकुलम तो यूनिवर्सिटी में दिया, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन टीचिंग पेडागॉजी जो है आप उसकी इंटरेस्टिंग बनाइए। आप अगर इंटरेस्टिंग बनाओगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट आएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट्स नॉट ओनली करिकुलम, टीचिंग पेडागॉजी भी मैटर करता है। इसीलिए रिस्पेक्टिव कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने ये देखना चाहिए कि उनकी टीचिंग पेडागॉजी, इनोवेटिव टीचिंग पेडागॉजी वो एक्सेप्ट ये अडॉप्ट करते हैं या नहीं। तो कहीं आपका डिमांड रेशियो बढ़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लो लर्नर्स और एडवांस लर्नर, यहाँ तो बड़ी मतलब गड़बड़ी होती है, क्योंकि हम जब जाते हैं कॉलेजेस में तो वो डेटा जो है वो ट्रू डेटा होता ही नहीं है। स्लो लर्नर्स और एडवांस लर्नर का एक स्ट्रक्चर्ड, एक साइंटिफिक मेथड है, वो अडॉप्ट करना चाहिए, जो कि ज्यादातर कॉलेज में होता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे करना चाहिए। मान लो मैं, जैसे कि मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो जब मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास जो भी बच्चे आएंगे, फॉरगेट वो मैथमेटिक्स, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, अभी एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी कुछ है नंबर सिस्टम पे, लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज रिवॉल्विंग। तो अगर बच्चों को नंबर सिस्टम अगर पता नहीं है तो वो तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म वेल। तो मुझे क्या करना है, जब वो कोर्स को आएंगे राइट इन द बिगिनिंग, मुझे शुरुआत में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसके 2-3 लेक्चर्स, प्रिलिमिनरी लेक्चर्स मुझे बच्चों पे लेने पड़ेंगे, कि मैं उनको बताऊंगा कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू। कंसेप्ट उनको आप बताएंगे 2-3 लेक्चर में। वो कंसेप्ट के बाद में आप उनका एक MCQ अरेंज करेंगे, मे बी 20 और 25 मार्क्स। ऑन द बेसिस ऑफ MCQ आप फिर डिसाइड करोगे कि 50 से नीचे जिनको मार्क्स मिले दे कैन बी कंसिडर्ड एज स्लो लर्नर्स, 50 से ज्यादा जिनको मिले दे कैन बी कंसिडर्ड एज एडवांस लर्नर। तो आप उसी कैटेगरी करिए। सो यू हैव कंडक्टेड MCQ, पहले आपने क्लासेस लिए, MCQ लिया,
आपने स्लो लर्नर्स, एडवांस लर्नर को आइडेंटिफाई किया। नाउ आगे आप क्या करोगे, आपके पास लिस्ट तो आई, सो थ्रू आउट द ईयर आप उनको मॉनिटर करिए। आप या तो उनके लिए अलग से क्लासेस लीजिए, या तो रेगुलर क्लासेस में आप उसके लिए अलग से समय दीजिए। एंड व्हेनेवर यू आर टेकिंग फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन, तब आप देखिए कि जो स्लो लर्नर थे वो रियल सेंस में उस कैटेगरी से एडवांस लर्नर में आप उसको मतलब ट्रांसफॉर्म कर पाए क्या। अगर नहीं कर पाए, इसका मतलब आपकी टीचिंग में खामियां हैं, आपके कुछ इश्यूज, आपकी जो डिलीवरी है उसमें कुछ खामियां हैं, आपको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जो आपके पास एडवांस लर्नर है उनके लिए कुछ प्रोग्राम देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि सिंस दे आर एडवांस लर्नर, यू नीड टू प्रोवाइड देम सम एडिशनल स्किल्स, एडिशनल मटेरियल, वो होना चाहिए। ये ज्यादातर कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में होता नहीं है। जो डेटा दिया जाता वो डेटा बड़ा घसा पिटा और बड़ा मतलब नॉन अपीलिंग डेटा दिया जाता है। स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग लर्निंग मेथड, उसमें एक्सपीरियंशियल टीचिंग होगा, पार्टिसिपेटिव लर्निंग होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। क्योंकि आजकल तो बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट रिवॉल्यूशन, आप अगर गूगल पे बैठोगे तो आपको देयर यू विल गेट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हाउ टीचिंग प्रोसेस कैन मेक मोर इफेक्टिव। देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आप एलएमएस आप यूज करते हैं, एलएमएस भी देयर आर फ्री रिसोर्सेस है, मतलब एलएमएस आप फ्रीवेयर भी है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। वेदर यू आर यूजिंग दिस और नॉट, दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। स्टूडेंट मेंटर स्कीम, यहाँ पर भी बड़ा गड़बड़ी होती है ज्यादातर कॉलेजेस में। स्टूडेंट मेंटर स्कीम क्या होती है, हम क्या करते हैं, हम जो टीचर पढ़ाता उसी को मेंटर बोलते। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों के कुछ एकेडमिक इश्यूज रहेंगे, जो टीचर पढ़ा रहा है उसके कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो किसको पास बताएगा, किसके पास बताएगा। सो व्हाट वी शुड डू अपार्ट फ्रॉम योर टीचिंग, वी शुड लाइक, आपके पास अगर 100 स्टूडेंट है, 10 टीचर है, तो आपको 10 स्टूडेंट जो है 10 टीचर में बांटना है। एंड देन वी नीड टू आस्क द टीचर टू हैव द मीटिंग एटलीस्ट वंस इन फोर्टनाइट। 15 दिन में कम से कम 1 मिनट मीटिंग लेनी पड़ेगी। आप वो मीटिंग का पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। वो मीटिंग का आप क्या क्या रिकॉर्ड रख सकते हैं, मीटिंग नोटिफिकेशन, मीटिंग जब आप मतलब एजेंडा होगा, नोटिफिकेशन के बाद एजेंडा होगा, उसके मिनट्स होंगे, मिनट्स के बाद में वो आपने रिकमेंडेशन जो आपके हेड को दिए होंगे या आपके प्रिंसिपल को दिए होंगे उसके पास रिकॉर्ड होगा। एंड देन उन्होंने क्या एक्शन लिया, ये पूरा सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो बच्चों के जो इश्यूज थे उसके पास आपकी सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए, कि आपके कुछ बच्चे थे, उनके कुछ इश्यूज थे, यू कुड रिजॉल्व दोस इश्यू। वो सक्सेस स्टोरी भी आपके पास होनी चाहिए। जब आप क्वालिटेटिव ड्राफ्ट लिखेंगे तब आप लिख सकते हैं, जब आप टीम आएंगे तब आप बता सकते हैं, जब क्वांटिटेटिव असेसमेंट होगा तब भी आप बता सकते हो। देन इवैल्यूएशन मेथड का बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब, जैसे मैंने कहा कि सीओस पीओस का आप अटेनमेंट कैसा करोगे। सीओस पीओस की अटेनमेंट आप तभी कर पाओगे जब आप आउटकम बेस्ड एजुकेशन होगा। अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है, मैं आपको क्राइटेरिया 2 में बताऊंगा। रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम्स है। रिफॉर्म्स इन एग्जामिनेशन का इश्यू कैसा है कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो यूनिवर्सिटी का काम है, हम कॉलेज वाले क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो रिफॉर्म्स है ना, ये रिफॉर्म्स एक्सटर्नल सेमेस्टर एंड में पूछ ही नहीं रहे। दे आर आस्किंग यू टू हैव द रिफॉर्म्स इन कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट। आप वहां पर भी, हम लोग ज्यादातर मतलब कंप्लेन करते हैं कि हम क्या करेंगे, क्योंकि इवन इंटरनल असेसमेंट का भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है यूनिवर्सिटी में, वो स्ट्रक्चर बदल नहीं सकते। आई एग्री, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ने दिया कि आपको 2 टेस्ट लेने हैं, उसके एवरेज मार्क देने हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑर्गेनाइज लाइक मेनी एक्टिविटीज। उसमें सेमिनार होगा, प्रोजेक्ट होगा, क्विज होगा, प्रेजेंटेशन होगा, देयर विल बी मेनी एक्टिविटीज, एंड देन कन्वर्ट दोस इनटू those structured tests and then provide it to the university who has stopped you. So that kind of reforms you have to do. कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस के लिए ये तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसा है कि स्टूडेंट कंप्लेंट्स और ग्रीवेंसेस के लिए उतना उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे को भी हमें स्टूडेंट को अवेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में स्टूडेंट जो होते हैं दे आर नॉट आईसीटी ड्रिवन, उनके पास आईसीटी इक्विप नहीं होता है, उनके ईमेल ज्यादातर चेक नहीं करते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे प्रॉपर फीडबैक नहीं देते। तो व्हाटएवर स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे का जो क्वेश्चनर्स है वो आपको स्टूडेंट को बताना पड़ेगा, एंड देन बच्चों को बोलना पड़ेगा कि उसको कैसे सबमिट किया जाए और उसका इंपॉर्टेंस कितना है, उनका रोल आपको बताना पड़ेगा। और उसके लिए, इसलिए मैंने कहा कि राइट इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू नीड टू हैव अ मीटिंग विद योर स्टूडेंट। क्राइटेरिया 3 के कुछ चैलेंजेस हैं जो मैं बताना चाहूंगा, कि जैसे कि प्रमोशन ऑफ रिसर्च फैसिलिटी, अभी ये यूजी पीजी कॉलेज के लिए लागू नहीं होगा,
बट यूनिवर्सिटी के अगर कोई पार्टिसिपेंट इसमें है तो उनको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रमोशन यू आर डूइंग, वेदर यू आर गिविंग सम माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट टू द फैकल्टी मेंबर्स, आप कोई रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज में, आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप बिल्ड कर पाए क्या, स्टूडेंट को आपने encourage किया क्या in terms of giving not fellowship but like you can provide some financial assistance for attending conference, some innovative meetings and so on so forth. Resource mobilization of research, that is also equally important. बहुत सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ऐसे हैं कि उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल लेकिन मोबिलाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि जैसे क्या होता है ना कि कॉलेज में एक इक्विपमेंट होता है, वो इक्विपमेंट किसी एक टीचर के कस्टडी में होता है, वो टीचर जो है बड़ा अकड़ेल टाइप होता है, and then he don't want to use that allow that equipment to be utilized by any other people. So principal की जिम्मेदारी है कि whatever resources we are having, those resources need to be properly mobilized across the campus. It's not only physical resources, intellectual resources भी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ अलग मतलब कुछ अलग प्लस पॉइंट होते हैं, हमें उनको एनकैच करना पड़ता है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रॉपर्ली मोबिलाइज करना पड़ता है। ये भी मिसिंग होता है ज्यादातर कॉलेज में। इनोवेशन इकोसिस्टम यूजी कॉलेज को लागू नहीं होता, लेकिन आपको मैं बताऊं पीजी कॉलेज एंड ऑटोनोमस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम का मतलब ये होता है, लोगों को लगता है कि भाई इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए। नो, खाली यूनिवर्सिटी में इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए ऐसा नैक को लगता है, बट ऑल ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस उनके पास अगर इंक्यूबेशन सेंटर नहीं भी है बट इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब क्या है, आपने कोई कमिटी स्टैब्लिश की क्या, आप जो है आपने कोई स्ट्रक्चर मैकेनिज्म आपके पास है क्या कि जहां से बच्चों के इनोवेटिव आइडियाज आप पिक करते हो, उनको आप प्रमोट करते हो, उनको आप प्लेटफॉर्म देते हो, उनको आप कनेक्ट करके देते हो, इस टाइप का आपने प्लेटफॉर्म बनाया है क्या। आप इनफॉर्मल भी आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर क्या होता है हमारे पास अगर कोई जीनियस स्टूडेंट है, वो अगर कोई अगर सवाल करता है तो बहुत बार ऐसा होता है टीचर उसको डिस्करेज कर दे, क्योंकि अगर उसको एनकरेज करेंगे तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए बहुत बार कुछ टीचर उसको डिस्करेज भी करते हैं। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि जो इनोवेटिव आइडिया जो बच्चों के पास आई है उसको मतलब उस आइडिया को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है या नहीं, वो दिस इज व्हाट इकोसिस्टम करत बस म्हटलं। रिसर्च पब्लिकेशन एंड अवार्ड्स की बात मैं बताऊं कि इसमें यहाँ पर भी बड़े प्रॉब्लम्स है। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस में लोग जो है सबस्टैंडर्ड जर्नल में डेटा पब्लिश करते हैं। अगर इफ यू आर पब्लिशिंग योर डेटा इन सबस्टैंडर्ड जर्नल देन यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल। आप कम से कम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल में आप डेटा पब्लिश करिए। मैं तो कहूंगा कि आप यू शुड गो फॉर स्कोपस इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स, वेदर इट इज एप्लीकेबल टू यू और नॉट, बट यू शुड गो फॉर दैट। लेकिन आप नहीं करोगे तो यू आर गोइंग टू सफर, क्योंकि आपको बताओ कि एनआईआरएफ में ये देखा जाएगा कि आपके क्वालिटी का, आपके पब्लिकेशन की क्वालिटी क्या है, तभी आपको एनआईआरएफ की अच्छी रैंकिंग मिलेगी। कंसल्टेंसी, although it is not applicable to affiliated colleges, but मैं कहूंगा कि consultancy can be done by any teacher। बहुत बार ऐसा होता है कि देखो कंसल्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हम कोई स्टूडेंट, हमारे पास स्टूडेंट तो नहीं, कोई स्टेक होल्डर हमारे पास आया है, हम उनको गाइड कर रहे हैं। मतलब इट कुड बी एनीथिंग। जैसे कि मान लो आपके पास कोई टीचर है, उनके पास बहुत सारे मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, उनको पता है कि मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे ड्राफ्ट करना है। So what he is doing, he is creating awareness amongst the faculty members of other colleges free of charge. But instead of that, what he can do, he can sit in his room और बता सकता है कि भाई 1 घंटे के लिए मैं 200 रुपए चार्ज करूंगा, आपको मुझे क्या पूछना है पूछिए। So this is kind of one consultancy, लेकिन उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, वो पॉलिसीज को आपको इंस्टीट्यूशनलाइज करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, शेयरिंग क्या है ये बताना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो then you will be in trouble. एक्सटेंशन एक्टिविटीज यहाँ पर बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सटेंशन एक्टिविटी जब भी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि बस एनएसएस दिखाई देता है। एनएसएस में क्या होता है, फिर हमारे एनएसएस के कैंप होते हैं 8 दिन के, फिर वहां पर गांव में जाकर साफ सफाई करो, कुछ हेल्थ के कुछ इश्यू आइडेंटिफाई करो, एंड देन दैट्स इट। ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करो, लेकिन हम ये कभी भी नहीं करते। बेसिकली एक्सटेंशन एक्टिविटी का मतलब ये है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, ये तो करना ही है, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट वी नीड टू डू, आप यूनिवर्सिटीज में या आपके कॉलेज में जो भी एकेडमिक आउटपुट आपका है, जो भी रिसर्च आउटपुट आपका है, उसका आप क्या कर रहे हो। क्योंकि आपका रिसर्च और एकेडमिक आउटपुट का आपके इर्द गिर्द में जो लोग रहते हैं उनको अगर कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ योर कॉलेज? नथिंग। सो एक्सटेंशन एनएसएस का मेन काम ये होना चाहिए कि एनएसएस शुड प्रोवाइड यू द कनेक्टिविटी बिटवीन योर कॉलेज एंड द सोसाइटी। तो आप देखिए कि कॉलेज के बाद जो भी आउटपुट है, वो आउटपुट से, वो रिजल्ट से वो किसी सोसाइटी के किसी क्रॉस सेक्शन का कोई इश्यूज एड्रेस कर सकते क्या।
that kind of extension activity need to be initiated. कोलैबोरेशन में there are three kinds of collaboration. एक होता है बड़ा स्ट्रक्चर्ड, उसको MOU कहते हैं. दूसरा होता है कि MOU नहीं होगा पर लिंकेजेस होगा. उसमें क्या होगा कि आपके उतना ये नहीं होगा, मतलब कमिटमेंट नहीं होगा कि स्टूडेंट एक्सचेंज है, फैकल्टी एक्सचेंज है, उतना कमिटमेंट नहीं होगा, बट it's a kind of agreement on paper that we are going to work together and we may be having some activities in future, so that can be considered as linkages. And कुछ कोलैबोरेशन ऐसे है कि जो नाइदर लिंकेजेस में आएंगे ना तो MOU में आएंगे, लेकिन इनफॉर्मल है. जैसे कि एक टीचर दूसरे टीचर, एक कॉलेज का टीचर दूसरे कॉलेज के टीचर के साथ काम कर रहे हैं, बट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू हैव सम प्रूफ. तो प्रूफ क्या होगा? अगर आप साइंटिफिक कोलैबोरेशन है, यू शुड हैव जॉइंट पब्लिकेशंस. सो दैट काइंड ऑफ ये हो नहीं रहा, एक्चुअली हो रहा है लेकिन बड़े कम पैमाने पे हो रहा है. दैट इज व्हाई दिस इज वन ऑफ द चैलेंजेस. एज फार एज क्राइटेरिया 4 इज कंसर्न, परसेंटेज ऑफ पर डे यूजेस ऑफ लाइब्रेरी बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट. ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ज्यादातर हम जब भी जाते हैं तो यहाँ पर जब कोई लाइब्रेरियन अगर अटेंड कर रहे होंगे तो उनको पता है कि ये डेटा नैक को देते समय लाइब्रेरियन को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर टीचर जाते ही नहीं उनके पास, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं आजकल तो सब कुछ हमारे कंप्यूटर पे अवेलेबल है, इसलिए हम लाइब्रेरी विजिट नहीं करते. वहां पर देखना पड़ता है कि फिजिकल विजिट कितनी है लोगों की, मतलब टीचर्स एंड स्टूडेंट की. लेकिन आपको मैं बताऊं कि ठीक है, आजकल नेट इंटरनेट पर सभी देयर आर मेनी रिसोर्सेज जहां पर ई बुक अवेलेबल है, ई जर्नल्स अवेलेबल है, बट देयर आर मेनी वर्ड रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ व्हिच आर नॉट डिजिटाइज्ड रादर. ओके, वो अभी भी हार्ड बाउंड कॉपी में अवेलेबल होते हैं लाइब्रेरी में, तो उसको विजिट करना बड़ा जरूरी है. इसलिए ये विजिट नैक ने कंपलसरी की है, जो कि बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है. दैट इज वन ऑफ द चैलेंज. E-content development में, although it is not applicable to affiliated colleges, but still E-content development के लिए आजकल देखिए, आजकल आपको पता चला होगा कि if you really want to develop E-content, आजकल वो बहुत सारा हाई-फाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए. एक लैपटॉप आपके पास, जूम का कनेक्शन आप लीजिए, कनेक्शन लेने की जरूरत भी नहीं, 40 मिनट का फ्री है, आप उसके ऊपर जितना चाहे उतना E-content डेवलप कर सकते हो. लेकिन वहां पर E-content की फैसिलिटी है कि नहीं ये पूछा है. अगर फैसिलिटी आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम बताइए कि yes, this is what the facility is. We have net connection, we have laptop, and this we are developing. It is quite doable. Procedure for maintaining and utilizing physical, academic and sports facilities. ज्यादातर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में कोई प्रोसीजर ही नहीं होता. मतलब कैसे नहीं, यूटिलाइजेशन, फिजिकल मेंटेनेंस का एक इक्विपमेंट लाया हमने, हमारे पास क्या होता है, हम इक्विपमेंट लाते, फैसिलिटीज हम प्रोक्योर करते, उसके बाद उसका मेंटेनेंस होता नहीं, 2-3 साल के बाद में खराब पड़ा होता है, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रक्चर मैकेनिज्म हम डेवलप करते ही नहीं. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट्स लाइंग आइडल, मुझे काम ही नहीं करते. वैसे ही फैसिलिटीज भी होता है. तो ये भी बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने कहा कि चैलेंजेस में रख दो. स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन में देखिए, कैपेबिलिटी एनहांसमेंट स्कीम, यहाँ पर हमें देखना है कि बच्चों को एम्प्लॉयबल बनाने के लिए क्या क्या स्किल इंपार्ट करने पड़ेंगे. यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड यू नीड टू how those schemes implemented in your colleges, and there are very few colleges who are very sincere about this. Student progression and placement, उसके लिए उसका तो डेटा होता ही नहीं हमारे पास. स्टूडेंट प्रोग्रेशन का तो डेटा ही नहीं होता हमारे पास. एक बार BSc के बाद बच्चा कहाँ गया हमारे पास पता ही नहीं होता. MSc के बाद स्टूडेंट कहाँ गया, इसका डेटा होता ही नहीं ज्यादातर कॉलेज में. बट नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इवन INR में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. प्लेसमेंट में भी अभी पहले ऐसा था कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट पूछते थे NAC, but now NAC started asking off campus placement as well. मतलब ऐसा नहीं कि क्योंकि आप अगर देहात में आपका कॉलेज है तो आपके पास बड़ी बड़ी कंपनी नहीं आएंगी, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन आइडेंटिफाई सम इंडस्ट्रीज एंड यू कैन सेंड योर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर TPO, and then you can have off campus placement as well. Okay, but still it is not happening. स्टूडेंट पार्टिसिपेशन यहाँ पर भी है, क्योंकि स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कम से कम 50% स्टूडेंट पार्टिसिपेट करनी चाहिए, जो कि होता नहीं. ज्यादातर 10% स्टूडेंट होते जो पार्टिसिपेट करते. ये भी एक चैलेंजिंग होता है. कंट्रीब्यूशन ऑफ एलुमनी, ये भी चैलेंजिंग है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एलुमनी का कंट्रीब्यूशन वी ऑलवेज काउंट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट इट्स नॉट ओनली मनी. आप उसका इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हो. क्या है, क्या ऐसा हो रहा है, क्या असलियत में होता है, लेकिन बड़ा इट इज ऑलवेज हैपनिंग इन आइसोलेटेड आइलैंड्स. बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी उसमें होती नहीं है. क्राइटेरिया 6 के चैलेंजेस है प्रैक्टिसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट. यहाँ बहुत सारे कॉलेज में ये इसका प्रॉब्लम होता है. कुछ प्रिंसिपल यहाँ पर मुझे पता है वो सुन रहे होंगे, कृपा कर
कृपा मतलब आपको मैं दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू काइंडली एक्सक्यूज मी बिकॉज आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनीबॉडी, बट दिस इज हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस कि डिसेंट्रलाइजेशन होता ही नहीं है। क्या होता है ना, प्रिंसिपल हमारे पास ही सब कुछ रखने की कोशिश करते, वाइस चांसलर हमारे पास ही रखने की कोशिश करते, कुछ गिने चुने लोग होते उन्हीं को इन्वॉल्व करते। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन भी बहुत सारे कॉलेज में होता नहीं, बट देयर आर मेनी कॉलेजेस इन व्हिच द प्रिंसिपल आर रियली पार्टिसिपेटिव, दे आर लाइक दे आर वेरी कोऑपरेटिव, दे फॉलो द डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में होता नहीं, वहां पर ही करना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव और स्ट्रेटेजिक प्लान का ऐसा होता है कि ये ऑन पेपर प्लान तो सभी के पास होता है, बट इट इज ऑलवेज ऑन पेपर। मतलब पेपर पे क्या है और क्या हो रहा है इसका कोई मतलब कोरिलेशन होता नहीं। कॉलेज तो छोड़िए, यूनिवर्सिटी में भी नहीं होता, क्योंकि आईडीपी मुझे पता है 2018 में जब आईडीपी हमने बनाया था, हम आज जब देखते तो हमारा आईडीपी पेपर पे है और असलियत में कुछ हो ही नहीं रहा, अथॉरिटी उसकी तरफ देख भी नहीं रही। तो मेरा एक कंसर्न ऐसा है कि जो भी अथॉरिटी है उन्होंने सीरियसली उसको देखना चाहिए, खाली बनाना नहीं, देखना भी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस, अभी देखिए कोविड-19 ने हमें सिखा दिया है कि ई के सिवा आपको कुछ नहीं होगा। ई गवर्नेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड राइट फ्रॉम स्टूडेंट एडमिशन टू स्टूडेंट डिग्री अवार्ड। वो पूरा प्रोसेस जो है वो ई गवर्नेंस उसमें होना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट, टीचर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट हम देते क्या, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में होता नहीं है। मतलब यूजीसी का फंड है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का फंड है तो दिया जाएगा, लेकिन ऑन देयर ओन, मतलब यूनिवर्सिटी में यूजीसी का फंड दिया जाता है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी का फंड दिया जाता है, लेकिन अपना खुद का सपोर्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो ज्यादातर कॉलेज में होता नहीं है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो हमारे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए हमने क्या ऑर्गेनाइज किए, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारे टीचर्स को बाहर से भेजते, बट इट्स नॉट ओनली दैट, क्योंकि बाहर सब कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द मिसिंग स्किल सेट अवर एम्प्लॉइज इज हैविंग। टीचर को हमें क्या मिसिंग है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन टीचिंग मैंडेटरी हो गया, हमें देखना, हर इंस्टीट्यूट के हेड को भी देखना पड़ेगा कि मेरे सभी टीचर को ऑनलाइन टीचिंग की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये तो स्पेसिफिक आपको, यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंसी, ये आपको करना पड़ेगा। नॉन टीचिंग स्टाफ को आपको कंप्यूटर अवेयरनेस है, व्हाटएवर जो भी आपको ट्रेनिंग देनी है वो देनी पड़ेगी। आरटीआई का ट्रेनिंग देना है, दैट नीड टू बी डन वेरी रेगुलरली। फंड्स एंड ग्रांट रिसीव फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट बॉडीज, इंडिविजुअल्स एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट से तो कुछ फंड आते हैं लेकिन नॉन गवर्नमेंट से फंड इज चैलेंजिंग। वी नीड टू हैव अ वेरी सिस्टमैटिक प्लानिंग फॉर ईच कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू टैप द फंडिंग रिसोर्सेज एंड अर्न सम मनी एंड स्ट्रेटजीज फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी नहीं होता क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने बताया कि जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एंड लास्ट क्राइटेरिया 7, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टू इंस्टीट्यूशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। यहाँ पर बड़ा सीरियस होना चाहिए। हमें ये देखना पड़ेगा, जब भी हम बेस्ट प्रैक्टिस आइडेंटिफाई करते हैं हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हम करते राइट फॉर्म, मतलब आप सभी प्रैक्टिस को आप कलेक्ट करिए, जितने भी काम आप कर रहे होंगे 1 2 3 4 5 और 6 लाइक 20 अलग अलग एक्टिविटीज आप कर रहे हो, आप उसको कलेक्ट करिए एंड देखिए कि सबसे ज्यादा किस एक्टिविटी को हम ज्यादा दिनों से हम कर रहे हैं, ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है, ज्यादा आउटकम उसमें है, ज्यादा एविडेंसेस हमारे पास है, ज्यादा जिसमें होगा उसी को आप बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, लिमिटेड 2-4 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। पार्टिसिपेशन लार्ज स्केल पे होना चाहिए, मोरओवर उसके आउटपुट सब्सटेंशियल होना चाहिए। आप 10 साल से कर रहे हो लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है तो 10 साल मैटर नहीं करेगा। सो ड्यूरेशन मैटर करेगा, बट एट द सेम टाइम उसका आउटपुट क्या है वो भी मैटर करेगा। ये इसी तरीके से आपको बड़ा सिस्टमैटिकली मेटिकुलसली उसको आइडेंटिफाई करना है। लेकिन आप ये कर सकते हो कि आपकी बेस्ट प्रैक्टिस आपके बगल वाली इंस्टीट्यूट की भी बेस्ट प्रैक्टिस की जैसी हो सकती है, बट एज पर एज डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन कंसर्न, इट शुड बी ऑल टुगेदर यूनिक। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप आपके कॉलेज में, आपके सिटी में, आपके यूनिवर्सिटी में, आपके स्टेट में आप स्पेसिफिकली डिस्टिंक्टली क्या अलग बाकी लोगों से कर रहे हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भी बड़ा मेटिकुलस हमें होना पड़ेगा। अगर मेटिकुलसली हम करेंगे, क्राइटेरिया वही होगा, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब ये होगा कि ये किसी और के पास नहीं होना चाहिए, एंड मोरओवर इसमें भी ज्यादा दिनों से होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सक्सेस रेट होना चाहिए, ये सब यहाँ पर भी होना ही होना है।
अब हम आगे बढ़ते चैलेंज, अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का वेटेज कर हम ये करते डिस्कस करते हैं थोड़ा। जब हमारे पास टीम आएगी या जब आप एसएसआर लिखने जाओगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहां पर कौन से पैरामीटर्स, कौन से क्राइटेरिया आपको क्वांटिटेटिव में ज्यादा मार्क्स देंगे और विच पैरामीटर्स आर गोइंग टू प्रोवाइड यू बेटर मार्क्स इन क्वालिटेटिव। तो आप अगर देखोगे क्राइटेरिया 1 to 6, 1 to 5, they are going to war flooded with the quantitative marks. ओके, वहां पर आपको क्वांटिटेटिव डेटा सबमिट करते समय आपको फोकस करने वाले कौन से क्राइटेरिया है 1 to 5। लेकिन जब टीम आएगी तब आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले क्राइटेरिया है क्राइटेरिया 6 and 7। ये आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास टीम आ रही है, आपका फोकस है 1 to 5, 6, 7 को आप फोकस ही नहीं कर रहे हो तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे नहीं। इसलिए जब आप डेटा एसएसआर लिख रहे हो तो आपको देखना तो है सातों क्राइटेरिया, बट सबसे ज्यादा फोकस आपको पहले 1 to 5 होना चाहिए जब आप एसएसआर ड्राफ्ट करोगे। एंड जब टीम आएगी, मतलब क्वांटिटेटिव डेटा आई मीन टू से, एंड जब क्वालिटेटिव का जो मैट्रिक्स रहेंगे तब आप 6 और 7 को ज्यादा फोकस करोगे। एंड देन दिस इज दैट वाज फॉर affiliated colleges, okay, UGPG, and this is for even same story is there for universities and autonomous colleges too. अब मैं रिजल्ट का थोड़ा ट्रेंड बताऊंगा आपको। ये भी जरूरी इसीलिए है क्योंकि अदरवाइज हमें पता नहीं चलेगा कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि रिजल्ट का ट्रेंड क्या है। ये है फर्स्ट विंडो का रिजल्ट। जब 2017 में जब असेसमेंट शुरू हुआ था तब आप देखोगे कि ज्यादातर कॉलेजेस बी ग्रेड पे थे। आप देखिए ज्यादातर कॉलेजेस आउट ऑफ 48, 17 वेर इन बी ग्रेड इन टू बिगिन विद। मैं अभी तक का रिसर्च ट्रेंड मेरे पास है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अबाउट 14 HES वेर डाउन इन ग्रेड, मतलब 14 को डाउन ग्रेड मिला था, 13 जो है अपग्रेड हुए। मतलब इसका मतलब क्या है, ज्यादातर इंस्टीट्यूट को डाउन ग्रेड मिला था लेकिन अपग्रेड होने वाले भी इंस्टीट्यूट थे। आप बिल्कुल मायूस होना नहीं चाहिए। आपने ये भी देखना चाहिए कि स्कोप इज देयर। नाउ अभी मैंने बताया था कि 1.51 आपको चाहिए हर क्राइटेरिया में पहले हुआ करता था वैसा। तो ये यूनिवर्सिटी का डेटा है। आप देखिए आउट ऑफ 43, 24 यूनिवर्सिटी कुड नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया। मतलब 24 यूनिवर्सिटीज को वन और अदर क्राइटेरिया में क्या मिला था, 1.51 से कम मिला था, मतलब दे वर नॉट क्वालिफाइड। कॉलेजेस में वैसे ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है यूनिवर्सिटी का। तो एंड देन जब हमने आगे चलकर देखा तो देखा कि क्राइटेरिया मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वे स्ट्रगलिंग इन क्राइटेरिया 3 and 6। मतलब 1.51 से कम ग्रेड क्राइटेरिया 3 और 5, 6 में मिले थे। मतलब चैलेंजिंग क्राइटेरिया क्या है, 3 और 6। कॉलेजेस का भी वही ट्रेंड है। आप देखिए आउट ऑफ 66 कॉलेजेस 33 कॉलेजेस क्वालिफाई नहीं हुए थे। फर्स्ट विंडो की बात कर रहा हूं मैं। आउट ऑफ 66 33 कॉलेज क्वालिफाई नहीं हुए थे, 1.51 मिला ही नहीं था उनको। एंड कॉलेजेस वेर आल्सो स्ट्रगलिंग इन क्राइटेरिया 3 और 6, 3rd and 6th. This is research promotion, research innovation and extension, and this is resources for learning resources, infrastructure learning resources. And ये अभी का रिजल्ट है अप्रैल 1, 2019 तक का। अभी का नहीं, एक साल पहले का। अप्रैल 1, 2019 तक का रिजल्ट क्या बताता है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है बी में थे, कितना 22%, उसके बाद बी प्लस में 18.5। सेम ट्रेंड है कॉलेज का भी। ये देखिए कॉलेज में भी ज्यादातर कॉलेजेस कितना है, बी में है, एंड उसके बाद बी प्लस में है। लेकिन आगे अगर जाओगे, अभी ये रिसेंट है, मतलब मार्च रिसेंट मीटिंग जो हुई अभी मार्च 11, 2020 को, तो ये पिछले एक साल का रिजल्ट देखिए। अभी ये पिछले एक साल का है, अप्रैल 1, 2000 मतलब मई 1, 2019 टू मार्च 11, 2020। आप देखिए यूनिवर्सिटीज के बारे में थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया, बी में ज्यादा है, लेकिन उसके बाद बी प्लस के बजाय वो ए प्लस तक गए। मतलब ए प्लस में देयर आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, बट एज फार एज कॉलेजेस आर कंसर्न उनका थोड़ा सा अधिपतन हुआ है। आप देखिए बी से वो सी को गए, मतलब पहले बी है, उसके बाद में जो बी प्लस था अभी वो सी, मतलब पिछले रिजल्ट का ट्रेंड ये है। तो इसीलिए इसका मतलब ये है कि हमें, इफ यू आर फ्रॉम कॉलेज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। अभी ये कुछ कॉलेजेस है, अनफॉर्चुनेट कॉलेजेस है, जिनका ग्रेड जो है माइनर मार्जिन से गया है। देखिए 3.00 उनको बी डबल प्लस मिला है, 3.00, 2.99 बी डबल प्लस। आपको पता है कि 3.01 रहा तो ए है, 3.00 से बी प्लस है। आई डोंट वांट, सो यहाँ पर हमें, मैं ये स्लाइड इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप थोड़ा कैजुअल अप्रोच आप रहा, थोड़ी वो लिखा होता है ना ट्रक के पीछे, थोड़ी नजर क्या कली और घटना घटी, ऐसा कुछ तो भी वो कहावत होती है वहां पर ट्रक के पीछे लिखी हुई। तो यहाँ पर अगर थोड़ा भी हम कैजुअल रहे
तो वी विल बी मिसिंग ग्रेड। और मान लो आप अगर अनफॉर्चुनेट रहे 0.01 से, तो आपको 5 साल ये ग्रेड को लेकर चलना है, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड ये इंस्टीट्यूट कुछ लकी इंस्टीट्यूट है कि जिनको माइनर मार्जिन से they could get the A grade, because you can see 3.01, 3.02, 3.02, 3.03 and so on and so forth. So I don't want you to fall into earlier category. I wish that you will all fall into this particular category. अभी हम आगे बढ़ेंगे, क्राइटेरिया 1 को हम फिनिश करेंगे and then we will stop. Organizer, should I continue? Hello? Hello? Organizer? Yeah, sir, you can continue. So another 15 minutes and then we will stop, okay? Okay. So my friend, so far we have seen कि NAC का फिलॉसफी क्या है, पर्पस क्या है, ओके? तो वो फिलॉसफी और पर्पस को सामने रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा वो हमने देखा। क्या चैलेंजेस है NAC के, क्राइटेरिया वाइज चैलेंजेस हमने देखे, रिसेंट रिजल्ट के ट्रेंड्स क्या है वो हमने देखे। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम NAC असेसमेंट के लिए जाएंगे तो हमें हमारी इर्द गिर्द क्या हो रहा है ये पता होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा तब तक हम अलर्ट नहीं होंगे। इसलिए आपको अलर्ट करने के लिए सब मैंने बैकग्राउंड प्रिपरेशन अभी किया है। अभी ये रियल टेस्ट हमारा शुरू होगा, ड्राफ्टिंग ऑफ AQR SSR। अभी ऐसा है कि मैं SSR बताऊंगा एंड नाउअडेज AQR का अगर आप फॉर्मेट देखोगे इट इज सिमिलर टू SSR, इसलिए AQR का अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज इफ यू आर गोइंग थ्रू SSR ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग योरसेल्फ रेडी फॉर AQR। तो आप अगर SSR का देखोगे तो सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी होती है, देन प्रोफाइल ऑफ द ऑटोनोमस, प्रोफाइल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, मतलब एफिलिएटेड कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो और ऑटोनोमस कॉलेज हो, देन एक्सटेंडेड प्रोफाइल, देन क्वालिटी इंडिकेटर वो मैं बताऊंगा आपको। एंड अगर आप इवैल्यूएटिव रिपोर्ट्स ऑफ द डिपार्टमेंट, ये ऑटोनोमस नहीं, एफिलिएटेड नहीं, ये दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑटोनोमस एंड यूनिवर्सिटी, नॉट एफिलिएटेड कॉलेजेस, ओके? ये इवैल्यूएटिव रिपोर्ट जो है एफिलिएटेड कॉलेज के लिए होता नहीं है। डेटा टेम्पलेट्स, ये तो आपको डेटा टेम्पलेट्स एंड SOP आपने देखा होगा। आपने अगर नहीं देखा होगा तो इंटरेक्शन के समय अगर सवाल करोगे तो मैं आई हैव डाउनलोडेड ऑल रिसेंट डेटा टेम्पलेट्स एज वेल। इफ यू वांट आई कैन शो यू द डेटा टेम्पलेट्स एज वेल, बिकॉज सभी के सभी जितने भी क्राइटेरिया, जितने भी इंडिकेटर है, सबके डेटा टेम्पलेट्स अभी NAC ने अभी भी रिसेंटली रिवाइज की है। तो एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या आना चाहिए? एक तो टोटल वर्डिंग लिमिट है 5000 वर्ड। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं, मान लो क्योंकि 5000 वर्ड बड़ा कभी कभी हमें कम लगता है, तो मान लो आपका बड़ा ज्यादा हुआ 10,000 वर्ड हुआ, आप उसको आपके वेबसाइट के पोर्टल पे रखिए, राइट? उसकी लिंक आप दे दीजिए। आप चाहते हो कि भाई NAC पीयर टीम ने पढ़ना चाहिए तो लेट देम रीड, बट जब आप अपलोड करोगे तब लेकिन ये 5000 वर्ड मैंडेटरी है, इसी के आप अपने आप को सीमित रखिए इसी की तरह। तो आपके इंट्रोडक्टरी नोट में क्या होगा? लोकेशन, विजन, मिशन, टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इसके बारे में लिखना है। क्राइटेरिया वाइज समरी, मतलब जितने भी क्राइटेरिया है उसकी एक समरी लिखना है 250 वर्ड की। ब्रीफ नोट ऑन SOC एनालिसिस, इसमें मतलब आपका SOC एनालिसिस होना चाहिए। एंड उसके बाद अगर कुछ एडिशनल आपको देना है तो आप दे सकते हो, ये 2 जो है ऑप्शनल है आपको देना, लेकिन पहले 3 जो है कॉमन है। देन प्रोफाइल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रोफाइल में क्या आएगा? नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, स्टेटस, सोर्स ऑफ फंडिंग, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, रिकॉग्निशन है कि नहीं, आपका जो भी एफिलिएशन वगैरह होगा यूनिवर्सिटी का, UGC रिकॉग्निशन, प्रोग्राम क्या क्या ऑफर करते, कितने डिपार्टमेंट आपके पास है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का डिटेल है, स्टूडेंट एनरोलमेंट का डिटेल है, यूनिट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन क्या है वो डिटेल है, और डिटेल्स ऑफ एक्रेडिटेशन स्टेटस, आप किस साइकिल को जा रहे हैं, ये सब आपका प्रोफाइल ऑफ द इंस्टीट्यूशन आएगा। एक्सटेंडेड प्रोफाइल इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल माय फ्रेंड। आपने देखा होगा कि वो जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन में जो फार्मूले जो दिए ना, जो फार्मूले में जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर सब एक्सटेंडेड प्रोफाइल से आएगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप यहाँ पर अगर गलती करोगे तो आप मारे जाओगे, तो यहाँ पर गलती नहीं करना, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंडेड प्रोफाइल, whenever you are writing extended profile, you have to be very serious. Okay, number of student enroll, आप seriously देखिए, program offered, seat earmarked for various categories, student, outgoing student, full-time teachers, sanctioned teaching posts, non-teaching staff, sanctioned non-teaching staff, classroom, seminar halls, number of computers, ये सब ज्यादातर पॉइंट इसी से रिलेटेड है।
कुछ पॉइंट मिसिंग भी हो सकता है, बट वहां इसमें सभी ज्यादातर नंबर रहेंगे। ये नंबर क्यों पूछे जाते हैं? बिकॉज NAG इज गोइंग टू, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड डेटा, NAG जो है उसका फॉर्मूले में डालकर उसका एक्चुअल वैल्यू निकालेगा। तो ये सब डिनोमिनेटर बनेंगे। तो डिनोमिनेटर यहाँ गलती से स्टूडेंट एनरोल, मान लो आपको लगता है कि नहीं नहीं हमारे पास है 3000 स्टूडेंट, लेकिन आपको लगता है कि डालो यार 3500 डालो, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो हर बार डिनोमिनेटर जाएगा और तब जो है आपका वैल्यू फैक्टर जो है वो रिड्यूस होगा। सो डोंट बी एग्जैगरेटिव, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा है तो आपका पासिंग परसेंटेज पे इफेक्ट होगा, स्टूडेंट आउटकम पे इससे इफेक्ट होगा, क्योंकि उतने नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। मान लो आपके पास 3000 स्टूडेंट है, आपने यहाँ पर बताया 3500 वो enthusiastically, फिर आगे पूछे जाएंगे कि भाई आउट ऑफ 3500 हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज। आपने अगर 100 लिख दिया, डिनोमिनेटर आपका 3500 है तो आपका फैक्टर कम होगा, लेकिन वही अगर डिनोमिनेटर 3000 रहा तो आपका फैक्टर कम अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब जो एक्चुअल डेटा है वही बनना चाहिए, वहां यहाँ पर कोई एक्सैगरेशन नहीं होना चाहिए। देन क्वालिटी इंडिकेटर की कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। SSR हैज टू बी फिल्ड इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट अवेलेबल ऑन NAG। ये आपको पता होगा, आपने देखा नहीं होगा क्योंकि जो जिन लोगों ने ट्राई किया उन्हीं को पता होगा, लेकिन बड़ा सिंपल है। आप जब आपका पोर्टल खुला, अगर जैसा IIQ जिस टाइप से IIQ सबमिट करते उसी टाइप से है, तो ओनली थिंग इज हियर देयर विल बी 3 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट। वन इज गोइंग टू बी योर टेम्पलेट व्हिच इज इन एक्सेल टेम्पलेट। सेकंड जो आप वर्ड और PDF फाइल दे सकते हो, उसमें एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आप आइडेंटिफाई करिए वो रखिए, एंड दूसरा जो है लिंक वाला डॉक्यूमेंट आप लीजिए, जिसमें एक खाली ब्लैंक पेज होगा, उसमें आप होगा कि क्लिक ऑन दिस लिंक होगा, एंड देन वंस NAG इज क्लिकिंग ऑन दैट, मतलब एक्सपर्ट, वो सीधा आपके पोर्टल पे जाएगा, देन देयर आप बिल्कुल क्राइटेरिया वाइज एंड देन स्ट्रक्चर आपका इंडिकेटर वाइज डेटा दे सकते हो। आप जब भरेंगे तो आपको डेटा फॉर्मेट, जब आप डेटा कलेक्शन शुरू करेंगे, जब आप SSR बनने जाएंगे, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द टेम्पलेट, गो थ्रू द SOP। मतलब डेटा टेम्पलेट क्या है पता चलेगा कि आपको हर इंडिकेटर में एग्जैक्टली क्या डेटा लेना है आपके टीचर से, उसके प्रूफ क्या क्या चाहिए, सब कुछ आजकल रेडी दिया हुआ है, उसको आपको सीरियसली पढ़ना है, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ोगे तो 11th तौर पे आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा। एंड देन लेट अस स्टार्ट विद क्राइटेरिया 1 बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट क्राइटेरिया 1। सो क्राइटेरिया 1 की जब बात करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, इसमें ज्यादा वेटेज है ऑटोनोमस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को 150 एंड UG PG कॉलेज को 100 मार्क्स का है। सो लेट अस स्टार्ट। सो पहला है ऑटोनोमस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी को, यहाँ पर क्या पूछा गया है, दिस इज क्वालिटेटिव मैट्रिक्स। करिकुलर डेवलप एंड इम्प्लीमेंटेड हैव रिलेवेंस टू, जो मैंने पहले चैलेंजेस में दिया था कि आपने जो करिकुलर दिया है वेदर इट हैज गॉट रिलेवेंस टू नीड्स ऑफ your local needs, national needs and international needs, okay, and accordingly आपने आपका आउटकम बेस्ड सिलेबस दिया क्या। अब आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या है, मैं कल जो है कल के सेशन में मैं डिटेल लेने वाला हूं कि व्हाट इज एक्चुअली आउटकम बेस्ड एजुकेशन, POs क्या है, COs क्या है, उसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा कल। इसको 20 मार्क है इफ यू आर फ्रॉम ऑटोनोमस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। अब लिखते समय ये कुछ पॉइंट्स है, मतलब आप क्वालिटेटिव ड्राफ्ट अगर लिखोगे तो आपको कुछ हिंट्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो क्वालिटेटिव ड्राफ्ट में आपका जो OBE करिकुलम है, POs, COs और PSO का, उसका आपको थोड़ा उसके बारे में लिखना है। देन आप रिवीजन के प्रोसेस आप कैसे एक्सेप्ट करते हो, मेजर एंड माइनर रिवीजन कोर्सेस आप कैसे करते हो, जैसे कि यू आर एक्सेप्टिंग इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड फीडबैक टू आइडेंटिफाई डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री, structured feedback from students, teachers, alumni, employer, parents and expert from academia, industry and research organization, एनालिसिस ऑफ करंट ट्रेंड्स इन मार्केट, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आपको एंटरप्रेन्योर अगर बनाने हैं तो मार्केट एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। बेंचमार्किंग विद रेप्यूटेड नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर सही मायनों में आपके बेंचमार्किंग अगर आपको सेट करने हैं तो आपको नेशनल इंटरनेशनल आपसे बेटर आप इंस्टीट्यूशन देखते हो, मतलब ये सर आप लिखेंगे कि हम करते हैं। देन रिव्यू प्रोसेस आप कैसे अडॉप्ट करते हो, रिव्यू ऑफ प्रोग्राम आप कैसे करते हो, CBCS का क्या स्टेटस आपके पास है, ये सब आप इस मैट्रिक्स में लिख सकते हो। Then this is quantitative. This is again applicable to autonomous college and university. Percentage of program where syllabus revision was carried out during last 5 years. यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूला अगर देखेंगे तो क्या है, number of program in which syllabus revision was taken place during last 5 years and divided by total number of program offered by the institution. ये नंबर जाएगा आपका एक्सटेंडेड प्रोफाइल में। आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम, तो यहाँ पर अगर गलती से आपने इंथुसियास्टिकली अगर ज्यादा नंबर दे दिए तो यहाँ फंसेंगे, इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। तो रिवीजन जो है एटलीस्ट
अब सिलेबस रिवीजन, आप ऑटोनोमस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी आपके हाथ में है, सिलेबस रिवीजन कैन बी डन एवरी ईयर एज वेल, ऐसा नहीं कि, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 5-5 साल में हम करते नहीं बहुत बार, तो यहाँ आप फंस जाओगे। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं यहाँ पर एसओपी में तो दिया ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी दिया, देखिए मिनिट्स ऑफ रेलेवेंट एकेडमिक काउंसिल और बीओएस मीटिंग, एनी एडिशनल, इसके अलावा आपके पास कुछ है, जैसे कि इसके अलावा क्या होगा, अगर आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के हो, ऑटोनोमस कॉलेज के हो, आपका अगर डिपार्टमेंट ऑटोनोमस है तो आपकी फैकल्टी मीटिंग, डीसी मीटिंग के मिनट्स आप दे सकते हो। डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम रिवीजन आपको वो मार्क करके देना पड़ेगा, मतलब पहला सिलेबस क्या था और नया सिलेबस क्या है उसको मार्क करिए, अदरवाइज जब वो डीबीबी में वो दिखाई नहीं देगा, क्वेरी आएगी, जब आप सबमिट करोगे तो आपको क्वेरी आ सकती है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि आपका ओल्ड सिलेबस कैसे है और रिवीजन आपने क्या किया। This is average percentage of courses having focus on employability, entrepreneurship, skill development offered by the institution during last 5 years. तो यहाँ पर भी ये भी autonomous college, क्योंकि ये curriculum designing से related है, ये only it is applicable only for autonomous college and university. यहाँ पर देखिए कि आपके जितने भी कोर्सेस है, जैसे कि मान लो आपके पास 50 कोर्सेस है, देखिए नीचे क्या है, नंबर ऑफ कोर्सेज हैविंग फोकस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज इन ऑल प्रोग्राम। कोर्सेज का मतलब क्या है, सब्जेक्ट, जैसा कि बीएससी प्रोग्राम है, बीएससी प्रोग्राम में आपके जैसे कि फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इन द सेंस पेपर उसको हम पेपर बोलते हैं, राइट। ऐसे आप काउंट करिए, साल भर के 3 साल के काउंट करिए कितने प्रोग्राम्स है, देखिए, और टोटल कोर्स के नंबर आपके पास आ जाएंगे। अब आउट ऑफ दोस हाउ मेनी कोर्सेज यू हैव मॉडिफाइड, how many courses you have modified, not modified, how many courses are going to have focus on employability। तो मैं ये कहूंगा कि आप अगर इसका आंसर परसेंटेज में आपको बताऊं 90% आना चाहिए इसका, अगर आप ए ग्रेड चाहते हो तो यहाँ पर 90% आना चाहिए। उसका रीजन ऐसा है कि आप अगर मानोगे कि आपके 50%, ये अगर मान लो आपने मान लिया कि मेरा 50% है, इसका मतलब आपने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि आपके 50% के बच्चे तो जॉब लगेंगे ही नहीं। इसका मतलब यू आर पुटिंग, मतलब अपने हाथों से आपके पैरों पे आप कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर सीरियस रहना पड़ेगा। नाउ दिस इज करिकुलम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेबल फॉर यूजी पीजी कॉलेज, जो कि आज के ऑडियंस में सबसे ज्यादा होगी। पहले 2 पैरामीटर है, क्वालिटेटिव, इंस्टीट्यूशन कोर्सेज एंश्योर्स इफेक्टिव करिकुलम डिलीवरी थ्रू अ वेल प्लान डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस। तो आपको यहाँ पर क्या देना है, अपलोड एडिशनल इंफॉर्मेशन, लिंक ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब जो भी आप देना चाहते हो एडिशनल, जो ड्राफ्ट के बजाय 500 वर्ड्स का आपको ड्राफ्ट लिखना है, उसके अलावा आप जो भी देना है वो आप उसी आपके पोर्टल पे डाल सकते हो। अब ड्राफ्ट में क्या लिखना चाहिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है। दूसरा भी है, इसको 10 मार्क है, 10 वेटेज है। दूसरा भी है, इंस्टीट्यूशन एड्रेस टू द एकेडमिक कैलेंडर इंक्लूडिंग फॉर द कंडक्ट ऑफ सीआईई, मतलब आपका जो कंटिन्यूअस इंटरनल एग्जामिनेशन जो है वो फॉलो करने के लिए आप एकेडमिक कैलेंडर को रेगुलर फॉलो करते हो या नहीं। ये दोनों क्वालिटेटिव ड्राफ्ट है। क्या लिखना चाहिए, देखिए पहला जो है उसके लिए क्या होना चाहिए, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम आप करते हो, पहले मान लीजिए। आपका विजन मिशन जो है आपके इंस्टीट्यूशन विजन मिशन, आप ईच डिपार्टमेंट का विजन मिशन जो है आपके इंस्टीट्यूशन के विजन मिशन को मैच करता है, ये स्टेटमेंट आपको करना पड़ेगा। देन करिकुलम डिलीवरी प्लान आप कैसा करते लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप डिस्कशन करते हो, प्रिपेयर करते हो, डिपार्टमेंटल मीटिंग होती है, उसमें आपका एकेडमिक कैलेंडर होता है हर डिपार्टमेंट का, वो दैट एकेडमिक कैलेंडर इज ऑलवेज इन ट्यून विद द कैलेंडर ऑफ आपके कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। देखिए 3 भाग ये होना चाहिए कि डिपार्टमेंट का एकेडमिक कैलेंडर ये लिखना चाहिए, आपका आपके कॉलेज का एकेडमिक कैलेंडर होगा और आपकी यूनिवर्सिटी का, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी का हो। तीनों का जो है तीनों का सब सीक्वेंस होना चाहिए। देन प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान बाय द टीचर्स, क्लास वाइज, पेपर वाइज, टीचिंग प्लान, एग्जीक्यूशन, टीचिंग, ये सब आप करते हो, ऐसे लिखना पड़ेगा। देन टीचिंग मेथड्स आप क्या क्या अडॉप्ट करते हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कि फील्ड विजिट है, एग्जीबिशन है, स्टडी टूल्स है। देन पार्टिसिपेटरी लर्निंग में ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप प्रोजेक्ट्स है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, स्टूडेंट ग्रुप एक्टिविटीज है, रिमेडियल कोचिंग है, ये सब आप करते हो, क्या लिखना पड़ेगा। आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग आप कैसे अडॉप्ट करते हो। टीओटी, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि इसमें वो भी मैटर करेगा कि आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको आप कैसे ट्रेन कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। देन रेगुलर रिव्यू मीटिंग फॉर बाय द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टू असेस द टीचिंग प्लान एंड स्ट्रेटेजीज, मतलब आपने जो टीचिंग प्लान बनाया उसका असेस करने के लिए भी हम मतलब इम्प्लीमेंटेशन के इफेक्ट्स क्या है वो फोर्सी करने के लिए भी हम मीटिंग्स लेते हैं। ये सब आपको इस क्वालिटी ड्राफ्ट में लिखना पड़ेगा।
जो दूसरा जो एकेडमिक कैलेंडर से रिलेटेड था वो मेनली आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का कैलेंडर है, आपके यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज का है, एंड your department calendar and college calendar is in very much tune with the affiliating university, ये आपको कहीं मेंशन करना पड़ेगा। एंड CIE जो है उसके जो थ्रू आउट द ईयर, जैसे मैंने बोला था आपको कि आप सेमिनार ले सकते हैं, प्रोजेक्ट ले सकते हैं, क्विज ले सकते हैं, ये जो भी आप कर रहे हो इंटरनल असेसमेंट के जो मेथड्स आप अडॉप्ट कर रहे हो वो आपके रेगुलर कैलेंडर में है या नहीं, ये दिस हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वालिटेटिव ड्राफ्ट, और अकॉर्डिंगली उसके प्रूफ भी आपको अपलोड करने हैं। मतलब इसलिए उन्होंने लिखा है कि आपके पोर्टल पे आप वहां पर लिंक दीजिए और आपके पोर्टल पे जो जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उसके सभी प्रूफ आपके पोर्टल पे होने चाहिए। दिस इज अगेन फॉर UG/PG कॉलेज। टीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू करिकुलम डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, जैसा कि एकेडमिक काउंसिल के भी मेंबर्स होंगे, BOS के मेंबर्स होंगे, देन क्वेश्चन सेटिंग के लिए तो 100% जाती होंगे, क्वेश्चन पेपर सेटिंग के लिए, करिकुलम डेवलप करने के लिए कोई जाता होगा, असेसमेंट के लिए कोई जाता होगा। तो यहाँ पर पूछ रहे हो वेदर यू आर डूइंग इट any 3, any 2, any 1, so I will suggest you to do tick on this all of above, क्योंकि आपको कम से कम अगर आपको इसमें 5 out of 5 चाहिए तो उसको all of above आना ही चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंगली जो भी आपके पास डेटा होगा वो डेटा आप सबमिट करिए। इसका मतलब क्या है कि you principal of the college need to ensure that the faculty members, one or other faculty members are going to participate in each and every one or other activities, not each and every activity। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि हर कोई फैकल्टी मेंबर कम से कम एक एक्टिविटी में वो कहीं ना कहीं तो पार्टिसिपेट होता ही होगा, ये इंश्योर करना पड़ेगा। Then academic flexibility, this is for autonomous college and university only। परसेंटेज ऑफ न्यू कोर्सेज इंट्रोड्यूस, क्योंकि ये कॉलेज नहीं कर सकता इसीलिए कोर्सेज है ये। तो कोर्सेज का मतलब क्या है कि आपके पास जितने भी कोर्सेज पहले थे तो नए कोर्सेज आपने कितने इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आपको ऑटोनॉमी नहीं रही तो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए ऑटोनॉमस कॉलेज और यूनिवर्सिटी को दिया गया। इसलिए मैंने कहा कि एडवाइजेबल ये है, इसको अगर एड्रेस करना है तो हर साल कम से कम एक नया प्रोग्राम होना चाहिए और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में कम से कम एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसको रिप्लेस करो या तो नया कोर्स करो। यू एंश्योर दैट, अदरवाइज आप AQR में ये सब डेटा, आपको AQR में भी यही डेटा देना है, AQR का अलग फॉर्मेट नहीं है, सेम फॉर्मेट है। अभी आजकल उन्होंने क्या किया कि साल भर का जो AQR होगा वही आगे आपको नैक असेसमेंट के लिए वो यूटिलाइज करेंगे। देन दिस इज फॉर ऑल UG/PG autonomous college। परसेंटेज ऑफ प्रोग्राम इनमें CBCS इज देयर और इलेक्टिव कोर्स। अभी कैसा है, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसे वहां पर अभी भी कुछ कोर्सेज को CBCS नहीं है, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी है वो देना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ प्रोग्राम इन विच CBCS और इलेक्टिव सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम। तो अगर मान लो आपके पास 5 प्रोग्राम है, 10 प्रोग्राम है, और 10 में से अगर 10 को आपको अगर CBCS है तो यू आर गोइंग टू गेट 100% मार्क, 10 out of 10। अगर कम है तो देन आप देखिए कि इलेक्टिव, एटलीस्ट इलेक्टिव सिस्टम उसमें है क्या, इलेक्टिव भी चल सकता है। एंड देन जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर व्हाट यू शुड एंश्योर, particularly college and university, you can include here at least you should ensure that at least one course and one new program need to be implemented every year। ensure at least one new course in each program। मतलब पहले तो क्या करिए कि आप एक प्रोग्राम इनिशिएट करिए, देन हर प्रोग्राम में एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करिए, एंड ये अगर आप कर पाए तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू टू जस्टिफाई। Then this is only for UG/PG college। Number of add-on certificate program offered during last 5 years। अब यहाँ पर जो है ना, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट करूंगा कि you need not wait for the approval। मैं ये कहूंगा कि yes you should submit that your proposal to university, लेकिन अगर मान लो यूनिवर्सिटी से लेट होता है तो you should not get discouraged। आप अपने लेवल पे, मैंने जैसा कहा कि you form your own academic council, उसका सिलेबस आप पास करिए, आपकी लोकल मैनेजमेंट होगी उससे अप्रूवल लीजिए, एंड देन यू स्टार्ट अवार्डिंग सर्टिफिकेट ऑन योर ओन। लेकिन ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि ये कोर्सेज जो है, इस कोर्सेज में जो स्टूडेंट जो एनरोल हो रहे हैं, ये स्टूडेंट आप ही के स्टूडेंट है जो कि बाकी प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल है। उन्हीं स्टूडेंट के लिए, मतलब आपको एडिशनल स्किल सेट, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए ये कोर्सेज है, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब इम्पार्ट करने के लिए कोर्सेज है। इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इस कोर्सेज, through this course you will be able to enhance employability and you will be able to
increase the entrepreneur from your college. तो यहाँ पर कुछ टिप्स है आपके लिए. ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स कुड बी 1 week to 6 months, मतलब 1 week का भी हो सकता है और मैक्सिमम 6 months का हो सकता है. ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा कुड बी 1 year to 2 years. कॉलेज में इंट्रोड्यूस सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज इवन विदाउट अप्रूवल ऑफ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, लेकिन आप अप्रूवल के लिए भेज सकते हो. एंश्योर वैल्यूएशन बाय दिस कोर्सेज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो कोर्सेज है आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव बताना पड़ेगा कि दिस इज गोइंग टू एंश्योर द वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन का मतलब कैसा है कि जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मान लो आपके यूनिवर्सिटी का करिकुलम है जो एम्प्लॉयबिलिटी देने में असमर्थ है, ऐसा आपको लगता है, तो व्हाट यू कैन डू, हियर यू हैव ऑप्शन, यू कैन स्टार्ट सम एड ऑन कोर्सेज एंड यू कैन एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी, राइट. Please ensure that student enroll under other regular program have registered for this courses. This is also very important. आपके BA, BSc, BCom में जो कोर्स स्टूडेंट होंगे वही स्टूडेंट यहाँ पर एनरोल होने, बाहर के कुछ हो सकते, बट कम से कम 80% स्टूडेंट आप ही के होने चाहिए, so that you will be able to defend कि ये स्टूडेंट को कुछ एडिशनल स्किल हम इम्पार्ट कर रहे हैं. एज ए रिजल्ट ऑफ दैट we were able to impart the enhance the employability. This is again for UG/PG. Average percent of student enroll in certificate program against the total number of student. ये देखिए यहाँ पूछा गया, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके पास है, अगर मान लो 1000 है, आउट ऑफ दैट कितने स्टूडेंट ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया. अगर मान लो आपके सर्टिफिकेट में बाहर के स्टूडेंट ज्यादा है तो वो सर्टिफिकेट के यहाँ पर आपको मार्क्स ही नहीं मिलेगी, या 10 में से बहुत कम मार्क्स मिलेगी. इसलिए आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वही स्टूडेंट को आप एनरोल करिए, सो दैट यू विल बी एबल टू ग्रैब द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब 10 out of 10. Then this is curriculum enrichment. This is for all UG, PG, autonomous colleges, university. You can see what is there. Institution integrate cross-cutting issues relevant to professional ethics, gender, human values, environment, sustainability into curriculum. अब देखिए ये कैसा है ना, जैसे मैंने पहले बताया ये आपको, ये सभी को लागू बताया. जैसे कि यूनिवर्सिटी का करिकुलम है जिसमें ये सब नहीं है, so what you can do, you can have add-on program for gender sensitization, human values, professional ethics, okay, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी. आप ये जो प्रोग्राम है इसमें इवन आप ये भी कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल के कुछ प्रोग्राम रख सकते हैं. इन एडिशन टू दिस आप कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक वैल्यू एडेड कोर्स रख सकते हैं, दैट आल्सो कैन बी डन. ये अभी ऑटोनोमस और यूनिवर्सिटी को पूछा गया. नंबर ऑफ वैल्यू एडेड कोर्सेज फॉर इम्पार्टिंग ट्रांसफरेबल एंड लाइफ स्किल ऑफर ड्यूरिंग लास्ट 5 years. तो यहाँ पर पर्टिकुलरली यदि ये ऑटोनोमस कॉलेज यूनिवर्सिटी को पूछा गया है कि सॉफ्ट स्किल इम्पार्ट करने के लिए आपने कितने वैल्यू एडेड कोर्सेज लिए हैं. दैट शुड बी 30 years or more. कॉन्टैक्ट अवर्स एटलीस्ट 30 years होने चाहिए. लेकिन मैं कहूंगा कि although this is applicable for university, but I would advise all college people that they should also think of having this kind of value added courses, so that you will be able to enhance the employability of your student. Then ये पूछा गया कि वो जो कोर्सेज है उसमें आपके स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन कितने हैं, एवरेज परसेंट ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन दिस कोर्सेज. Again, this is applicable for autonomous college and university. Now, this is UG/PG college. Average percentage of courses that include experiential learning through project work, internship during last 5 years. अब यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसा है कि मान लो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें अगर ये प्रावधान नहीं तो you are going to lose the mark. So what you can do? Until they are not there, you have your own academic council. उसमें आप काय यार काय केलं तू यार, माझं झूम चालू होतं व्हिडिओ पहा. Hello. Can you please ensure the muting of the other speakers? Okay. अजय जी तुमचा फोन म्यूट करा. अजय जी तुमचा फोन म्यूट करा. ओके, केलाय आता त्याने, केलाय नो इश्यू. ओके, लेट अस मूव फर्दर. तर आता यहाँ पर क्या होगा, देखिए कि अगर मान लो आप यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें ये सब नहीं है तो यू विल बी स्टक अप, 10 मार्क जाएंगे आपके. तो आप व्हाट यू कैन डू, आपके अपने कॉलेज का आप बोर्ड ऑफ स्टडी करिए, एकेडमिक काउंसिल करिए. किसने रोका आपको? किसने नहीं रोका. आप उसमें ये प्रावधान करिए एंड देन वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में आप सबमिट करिए एंड लेट अस सी वेदर NAAC इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस. एंड मोस्ट लाइकली NAAC इज गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, बिकॉज यूनिवर्सिटी नहीं किया तो क्या हुआ, आपके पास है. अगर अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स हियर. देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट अंडरटेकिंग फील्ड, देखिए 10-20 मार्क्स जाएंगे आपके पास, क्योंकि वो नहीं है, मतलब आपके स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो दे विल बी लूजिंग 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स आर टू मच. मतलब वो जो 3.00 और 3.01 का डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर. इसलिए आप आपका डॉक्यूमेंट तैयार करिए, यहाँ पर फील्ड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप आप मैंडेटरी करिए, उसका रिकॉर्ड बनाइए
and you try to defend. Let me tell you, if you are, as long as you are not doing any illegal, you are, you should not be, you are least bothered. You should go ahead and defend it. And then feedback process, this is very important. This is last but one criteria, whether an institution has this mechanism to collect the feedback from student, teachers, employer and alumni. Parent का भी निकाल दिया. तो I will request all the stakeholders, I mean those who are attending, you should have the online feedback portal for collection of feedback on student, teachers, employers and alumni. क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि भाई आप लेते हो क्या? That's it. Okay. तो अगर लेते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये इसका सैंपल ब्लैंक फॉर्म आपको देना पड़ेगा. एक रिटर्न फॉर्म आपको स्कैन करके आपके पोर्टल पे लगना पड़ेगा. एंड देन आगे जो है ये वाला, इसमें क्या पूछा है? फीडबैक कलेक्टेड, एनालाइज एंड एक्शन टेकन. फीडबैक कलेक्टेड, एनालाइज, एक्शन टेकन हैज बीन, मतलब एक्शन टेकन एंड अवेलेबल ऑन वेबसाइट. मतलब यहाँ पर कलेक्ट भी है, एनालिसिस भी है, एक्शन टेकन भी है, अवेलेबल भी है वेबसाइट पे. आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो फॉर दिस ऑप्शन ए. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे मैंने पहले बताया कि आपको जो फीडबैक आप लोगे तो वो फीडबैक का आप एनालिसिस करिए, आप डिपार्टमेंट मीटिंग में उसको आप डिस्कस करिए, एक्शन प्लान बनाइए, you get it, send it to your principal or your higher authority, get it implemented. And this entire process you can keep it on your website. Right form, blank form, filled form, analysis, action taken, और action taken के बाद का result जो है ना वो भी आप आपके वेबसाइट पे रखिए. And then this is last slide of today's presentation. आप देखिए, अगर सही मायनों में करिकुलर एस्पेक्ट को, ये इंडस्ट्री एंगेजमेंट मॉडल है, इसको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट मॉडल कहा जाता है. इसको इट्स नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, आई विल रिक्वेस्ट, दिस इज डूएबल इन इवन इन कॉलेज एज वेल. इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. कंसल्ट इंडस्ट्री or employer. So what you need to do is, you need not be industry, you could consult industry where your students are being employed or any employers. Employer मतलब क्या है? आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके स्टूडेंट कहाँ हैं. You just take feedback from them regarding your curriculum, regarding your teaching, learning, pedagogy which you are adopting, right? Accordingly design the strategies for teaching, training and assessment, because based on this you have to design the strategies for training, that is training means teaching, learning and assessment as well. Then once you design, select the suitable resources, trainer and assessor. This is very important. Unless you have appropriate resources, unless you identify the appropriate resources, you won't be able to implement it effectively. And then develop and update the record. That is also very, very important. Once you do it, you keep the records. This is going to be very important for improving your entire process. And then implement and reflect the industry advice in delivery and assessment. Whatever industry advice you got, you just reflect it in delivery as well as your assessment. And then at the end, evaluate your training, have some conclusive remark, and again consult with industry. So this is a continuous model. This is continuous industry engagement model. If you could do it, definitely you will be having wonderful activities. The policy जो मैंने पहले बताया था ना, कि जो philosophy और purpose जो है, philosophy है continuous improvement, वो भी हम एड्रेस कर पाएंगे. Purpose है NAAC का to fulfill the expectations of all stakeholders, वो भी हम कर पाएंगे. अब मैं यहाँ पर रुकना पसंद करूंगा. I will request organizer to initiate the questions. Yes sir.